हेलो फ्रेंड्स, एनआरआई पॉडकास्ट के एक एपिसोड में आपका स्वागत है। ये हमारे लिए एक स्पेशल एपिसोड भी हो सकता है। द रीज़न बीइंग कि आज तक हमने जो जिन भी कॉमिक्स या पब्लिशर्स के बारे में जिन डिस्कस किया है, दे वर ऑल आइदर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड और दे ऑलरेडी हैड मेड नेम्स फॉर देमसेल्व्स इन इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री। टुडे वी ब्रिंग यू अ टोटली न्यू पब्लिशर। मतलब मैं बिल्कुल न्यू तो नहीं हूँ, एज इफ दे हैव स्टार्टेड जस्ट नाउ, but they have some few good lineups, but they will still be categorized under the newbie categories क्योंकि they are still making their way in the Indian comics industries. Typically जो Indian comics है, उनका जो भी publications है, it's not that typical Indian comics that you have read, but it's more like a manga inspired Indian comics का version made for the Indian audience. So friends, we would like to introduce you to Vishwesh Shetty, the publisher, the writer behind Kissa Comics, who has recently they brought us some good books, especially The World Beyond, Power play. Six Parts, and Parts and Power Play. So the Yeah. basic for all these three books, there are three different style of writing, three different totally different stories. None of them are as if जो हमारे जो typical Indian super heroes वाली comics है वैसा कुछ नहीं है. They are more aligned to manga. So if you or somebody in your family has read manga, they will find these books really more nearer to the manga than to हमारी जो राज कॉमिक्स होती है, मनोज कॉमिक्स या डायमंड कॉमिक्स के कंपैरिजन में. Power Play, as the cover suggests, is based on Cybernetic Cricket League. So more or less, if you are cricket enthusiastic, it's rare to find a comics which is dedicated to the game of cricket. You will love to read about it. The World Beyond is something जो intergalactic या story है. It's set in a solar system where humans are there, and it's all जो भी उस solar system पे crisis होती है, the power plays that's being held there. That's what the World Beyond is. Six parts is more about. I let Vishwesh speak, but six parts is more about where Indian mythology से थोड़ा थोड़ा inspired है. It's more like different forms of energy systems, how they aligned and how a country is being saved. So it's more like a spiritual, mystic and mythological sort of वो एक genre में करूँगा. But if you start reading this book, the good part is the story is very good, concise है, to the point है, and कहीं भी मतलब they have not moved away from the story. And जैसे भी एक whenever you start reading any typical manga book, आप start to end you are fixed to the story. The same has been for all the three series. ये तीनों series अभी finish नहीं हुई हैं. They are still being worked on, and I think recently Power Play का second part भी आ गया, which I don't have it with me, which I saw on your site, Vishwesh. So I'll let the stage to Vishwesh. Let him speak about Kissa Comics and then coming on to the books. Vishwesh, the stage is yours. Yeah. Thank you guys. Thank you for inviting me. Like I've been watching, like when I first started, thought of starting comic or manga in India, I was looking for content जो मैं online Indian comics के बारे में पढूं, and yours was the first YouTube channel that I was reading about Bullseye Press, Swayambhu. So actually I'm not an artist, I'm a writer. So I had several ideas. So I started writing 3-4 years ago, and there was one idea which I thought I cannot write it in a novel form, but it makes more sense in the visual art form. And that's when I explored comics, and then I chose manga as a format. So that was World Beyond, and since then I added two more series, and I'm just focusing on these three series. Or one of the good thing about us कि हम लोग every 2 months we release one chapter, so we are consistent. So I started last September or August September, and this like in 12 years we have really 12 months we have released 7 chapters across these So, three comic so series. you are just a year old, right? Yeah, it's just a year old. Just Yeah, Okay. like the in first. a year they have released 7 books of 30 plus pages, Yeah, and without compensate like without compromising on the quality, right? Which is yeah, a thing in itself, right? Um, yeah. so right, So Vishwesh, like what I saw when I like all your books have different artists,
Yeah, Nitin, I think I for forgot World the other Beyond, two names. No, and so Hirak Jyoti Nitin for is there, Power Aryan Play. is there, and I think the third one is Third guy is Hirak Jyoti. Hirak, right? So Yeah. जैसे हमने काफी पब्लिशर से बात करी ना, तो सबको आर्टिस्ट की हमेशा तंगी रही है. But in this 12 months, how did you find, right, like these artists, and you were able to produce these books so fast? Okay, so first I started searching for artists. So I came across a Reddit subreddit, which is like comic collab. तो कॉमिक बुक कोलैब करके एक सबरेडिट है, तो वहाँ पे बट वो मोस्टली आउटसाइड इंडिया है, एक्सपेंसिव है, और मुझे इंडियन आर्टिस्ट ही चाहिए थे. देन आई आल्सो पोस्ट एन अपवर्क, दैट्स हाउ आई मेट नितिन. एंड आई यूज्ड टू पोस्ट अबाउट माय कॉमिक्स, वहाँ से एक दो लोगों ने अप्रोच किया, तो थोड़े तो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, थोड़े अफोर्डेबल थे. तो उसके बाद देन आई मेट लाइक आर्यन, एंड देन the first two books I still could find artist, or I started with it, but third book I changed 3 artists. Like the first one I did couple of pages, वो इतना up to the mark नहीं था, फिर से किया, उसको 4 pages का पे किया, फिर वो भी इतना up to the mark नहीं था. फिर third में I found, and he is also a college, the Hirak is also a college student, so उसके इतने एक्सपीरियंस नहीं है, बट उसका बहुत पैशन है कि he wants to be a mangaka and he wants to be the best mangaka, तो he works hard for it. So then I found Hirak. So I won't say like among these three, Nitin is more experienced. उसका art काफी ज़्यादा refined है compared नहीं, to वो other आपका two. दिख भी रहा है कि अपने तीसरे में उसको लेटर की भी क्रेडिट्स दी है. हाँ, क्योंकि जो हिरक को लेटरिंग नहीं मतलब मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे अपने कॉस्ट थोड़े अफोर्डेबल रखना था, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि, तो मांगा का भी सिलेक्शन एक तरीके से उसी के लिए था, क्योंकि अगर मैं कॉमिक बुक कलर कॉमिक करूँ तो मुझे टाइम और कॉस्ट दोनों में इम्पैक्ट होता, कि मेरे को आर्टिस्ट चाहिए, उसके बाद उसको कलरिंग करना है, फिर लेटरिंग के लिए 3 आर्टिस्ट मुझे मतलब ढूंढने पड़ेंगे, उनको पे करने पड़ेंगे. तो उस थॉट प्रोसेस थे. और ऐसा है कि जो नया ऑडियंस है, जो यंगस्टर है, जेन ज़ी और उसके मिलेनियल्स और जेन ज़ी के बीच में, वो लोग काफ़ी मतलब मांगा फैंस भी है रादर देन अ कॉमिक फैन. सो इट वर्क्स इन बोथ वे, कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, और जो यंगर जनरेशन के लिए जो मांगा एज ज़्यादा रिलेटेबल है रादर देन अ नॉर्मल सुपर हीरो कॉमिक बुक ऐसे. तो फॉर दैट रीजन ऑल्सो मैंने मांगा चूज किया था. और बिकॉज ऑफ दिस मीडियम आई ओनली नीडेड वन आर्टिस्ट फॉर ईच कॉमिक. नॉर्मली एक कॉमिक बुक के पीछे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, तो उसके लिए मुझे मतलब नितिन से ही मैंने 3 चैप्टर करवा दिए, तो वो लेटरिंग भी करता है, इंकिंग, टोनिंग सब कुछ कर लेता है. सो तो वैसे मतलब आई माइट लाइक अभी आगे जाके मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद मैंने देखा है कि और भी ज़्यादा अफोर्डेबल आर्टिस्ट है जो टैलेंटेड भी है, और उन्हें काम भी चाहिए. मतलब नॉर्मली आई थिंक जो बाकी बड़े पब्लिशर्स है, वो बहुत एक्सपीरियंस लोगों को देखते हैं जिनके पास जो ऑलरेडी कॉमिक पब्लिशिंग में काम कर चुके हैं. और मैंने उनसे इंटरेक्ट किया है जो जिनको ऐसा आर्ट जो कॉलेज से बाहर है, या जिन 25-26 है, जिनको बहुत आर्ट का पैशन है, और वो आर्टिस्ट भी अच्छे हैं, और वो ऑलरेडी मांगा की तरफ लीनिंग भी है, उन्हें मतलब वैसे टाइप खुद से बनाने की भी कोशिश करते हैं. तो वो है कि उनका मतलब अभी एनाटॉमी एक थोड़ा मतलब जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी बनाना इजी नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शंस एंड ऑल. तो वो चीज़ है कि वो जो बना के सीखेंगे ज़्यादा इम्प्रूव होंगे. पर एट दिस स्टेज मतलब मुझे जो स्टोरी बोलना है उसके लिए आई थिंक इट्स लाइक 6-7 ऑन 10 इन टर्म्स ऑफ आर्ट. सो आई एम ओके विद टू गो विद दैट. अगर मैं ऐसे एकदम ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट के लिए वेट करूँ, या जो ऐसे 10 ऑन 10 ही हो, और उसके हर एक पेज पर हर एक पैनल परफेक्ट हो, तो वो अगर मैं उस तरीके से जाऊँ, तो परफेक्शनिस्ट के लिए तो आई थिंक मैं इतना चैप्टर्स रिलीज भी नहीं कर पाऊंगा ऐसे. So in that sense, yeah, हाँ. It is a totally practical approach आपने ली है just to get the book published means. But वही है means the approach I think कि आपकी जो books हैं, किस्सा की जो भी books है, they are more tended towards जो हमारा Gen Z है या 15 to 25 वाली generation है, right? जबकि normally जो हमारे बाकी इंडियन पब्लिशर्स है, वो हमारी और जीत भाई की एज वालों पे ज्यादा फोकस नहीं, दो एक्सट्रीम में आते हैं, या हम जैसे अधेड़ या बच्चे उन पे फोकस करते हैं. तो कमिंग टू दिस होल पब्लिकेशन, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ व्हाई कॉमिक्स, व्हाई विश्वेश शेट्टी चोज टू राइट एंड पब्लिश कॉमिक्स, क्योंकि इंडियन कॉमिक्स की हालत हम सब जानते हैं. बहुत कम छोटी सी मार्केट है. आप
मतलब आर यू डूइंग ओनली फॉर द पैशन या उसके पीछे आपकी कोई सोच है? हाउ मतलब व्हाई डिड यू टुक इट अप? आई तो हर्ड दैट यू आर इन हाँ आईटी, राइट? यू आर अ हाँ टेकी गाय। सो वो एक या सेफ जो होता है ना इंडिया में, सेफ घर, हम्म पैसे वाली फील्ड छोड़ के ऐसी फील्ड जो सिर्फ हम्म पैसा खाएगी, बहुत देर में पैसा देगी, ऐसे क्यों? सो दो तीन चीज़ है कि पहले तो मतलब मेरा जो आईटी का करियर है, सो उसमें मेरा बिजनेस ही था, मतलब मेरे ऐप्स थे। तो अ, उसमें मैंने 15 इयर्स दे दिया था। तो उसके बाद फिर उसके बाद मेरे पास ऐसे ऐप्स है जो मेरे इन्वॉल्वमेंट के बिना चल रहे थे, तो मुझे वो मेरे पास वो फाइनेंशियल फ्रीडम था और टाइम का भी फ्रीडम था, तो मैंने वो अपने काम का आउटसोर्स किया किसी और को, तो वहाँ से मेरा रेवेन्यू स्ट्रीम तो आ रहा है। तो ऐसे नहीं था कि मैं मतलब फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होने वाला था, वैसा नहीं था कि अगर मैं ये करूँ तो मुझे फाइनेंशियली आई विल स्ट्रगल, अगर 1 महीने में प्रॉफिटेबल नहीं होगा, 1 साल में प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा। तो वो मतलब मैंने उस प्रॉफिट और इस माइंडसेट से नहीं आया था। मुझे फिर था कि आई वांट टू डू समथिंग एल्स, देन आई यूज्ड टू राइट। तो मैं 3 इयर्स से मैं राइटिंग में जा रहा हूँ। तो मैंने ऐसे शॉर्ट नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, लाइक शॉर्ट स्टोरीज़, हॉरर स्टोरीज़ लिखे थे, एक छोटा बुक पब्लिश किया था। तो वो राइटिंग के इसमें फिर मुझे लगा कि उससे पहले लाइक एक टाइम पे मैं नारुतो और इसका बहुत बड़ा फैन था, जब मैं मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में 10-15 इयर्स अगो। तो वो तो हैंगओवर था कि हमने ना डेथ नोट, नारुतो वो सब बहुत देखा था। और उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था, उसने भी कॉमिक्स का लाइक अटेम्प्ट किया था, उसने भी एक बुक बनाई थी। तो मुझे मैंने उसको हेल्प भी किया था कुछ हद तक, तो आई वाज इन्वॉल्वड इन दैट। तो मुझे आइडिया था। और मुझे मेन है कि स्टोरी, आई वांट टू टेल अ स्टोरी। तो मुझे मेरा राइटिंग और स्टोरी के हिसाब से या तो मैं बुक लिख सकता हूँ, या मैं कॉमिक कर सकता हूँ, या मैं मूवी बना सकता हूँ। तो उसमें अभी मुझे विजुअल आर्ट फॉर्म में अगर कुछ करना है, सो कॉमिक वाज द चॉइस, की जो एक तरीके से अफोर्डेबल भी है, जो मासेस तक रीच भी, मतलब आई कैन टेक द स्टोरी टू द मासेस एज वेल। और ज़्यादा फाइनेंशियली एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब उसका मैं कोई सीरीज है ये, तो वो तो ऑब्वियसली अफोर्डेबल नहीं है। तो मेरी स्टोरीज या तो मैं बुक कर सकता हूँ, या तो एक दूसरा कोई विजुअल आर्ट फॉर्म कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ केम अप विद की कॉमिक्स कर सकते हैं। और मैंने फिर बिफोर आई स्टार्टेड आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च कि इंडिया में क्या चल रहा है कॉमिक्स का, मतलब कौन बना रहे हैं और क्यों मीडियम मतलब इतना चल नहीं रहा है। तो दो तीन मुझे पेन पॉइंट्स मिले, पर पर आप बना के उसको एज अ मतलब आपका स्टोरी अगर आपको बताना है, आप बना के उसको सेल कर सकते हो। मतलब टू गेट सेल्स इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट वो सेल्स प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो वो थोड़ा मतलब वो मे बी फ्यूचर में अगर वो बैलेंस आउट हो जाएगा कि अभी मैं स्पेंड कर रहा हूँ टू क्रिएट कॉमिक्स, बट एक बार मेरे सारे वॉल्यूम्स बन जाए और उसके बाद मैं सिर्फ सेलिंग पे फोकस करूँ, तो प्रॉब्ली इफ आई फाइंड अ ब्रेक इवन कहीं कि 500 रुपए के एड पे मैं 1000 रुपए का कॉमिक बेच पा रहा हूँ, सो देन इट विल ऑल्सो बी प्रॉफिटेबल। बट मेन नहीं था मेरा, ये था कि मेरे स्टोरीज शुड रीच मासेस। दैट वाज द मेन गोल की। और आई चूज कॉमिक एज अ मीडियम because I like that medium, or it was more affordable, it was more accessible right now. So that's how I came into comics. And yeah, तो मैं थोड़ा और बैक ट्रैक करूँ तो आप खुद को कॉमिक फैन बोलते हैं? मतलब हैव यू, मतलब जैसे हम लोग तो हैं no, आरसी पढ़ पढ़ मतलब के मैं बड़े ऐसा नहीं हुए बोलूँगा हैं। कि मैं कॉमिक पर्टिकुलरली कॉमिक फैन हूँ, पर मैं क्या बोलते हैं, मैं एक ये आर्ट फैन हूँ, इन द सेंस एज अ स्टोरी फैन हूँ। तो अगर वो आप मुझे नेटफ्लिक्स की सीरीज में दिखा दो, और उतना ही अच्छा स्टोरी आप मुझे मांगा में बता दो, या 2D एनिमेशन में बताओ, या एक कॉमिक बुक में बताओ, तो हम्म। मीडियम मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता, आप जितना स्टोरी वो टेलर स्टोरी हो। या स्टोरी टेल। हाँ, तो वो स्टोरी हो तो जैसे अगर वो वन पीस में अगर मैं मांगा भी देखूँ या लाइव एक्शन देखूँ, या उसका एनीमे देखूँ, तो वन पीस का मैंने सबसे पहले तो लाइव एक्शन देखा। अगर मुझे वो पसंद है तो मुझे वो पसंद है। अभी मुझे ऐसे नहीं है कि ये तो मांगा है, मुझे मांगा पढ़ना चाहिए इसका। तो मुझे वो मीडियम, एक मतलब मीडियम, हर एक मीडियम का चॉइस लोगों का होता है, पर मेरे लिए मीडियम से ज़्यादा अगर वो कलर्ड हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, मुझे वो नहीं फ़र्क पड़ेगा। मुझे वो स्टोरी ज़्यादा मैटर करती है कि वो स्टोरी क्या है, वो एंगेजिंग है कि नहीं। क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक स्टोरी का अलग-अलग विजुअल फॉर्म तो बन ही हम्म। जाता है। तो हम्म। वैसे तो मतलब मैं इतना एंथुसियास्टिक नहीं हूँ कि कॉमिक बुक की मेरे पास कॉमिक बुक कलेक्शन हो। और मैंने कॉमिक्स खरीदे ही थे जब मैंने सोचा कि अगर मुझे बनाना है, तो तब जाके मैंने बहुत सारे कॉमिक्स खरीदे, उनको पढ़ा।
तो मेरे पास जो भी कलेक्शन भी अभी है, मेरे पास 15-20 कॉमिक्स, पर वो लास्ट 2 साल के ही है कि जैसे मैंने स्वयंभू के कॉमिक्स खरीदे, गुलजार प्रेस के थोड़े खरीदे, टेक्निकलर जी वाला खरीदा, फिर याद है। मांगा में 2-3 है, हंटा करके, फिर निर्वाणा कॉस्मिक्स का, तो वो सब मैंने खरीदा। फिर उससे मुझे थोड़ा समझा भी कि कहाँ पे लूप होल्स है, कि कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है। एक चीज मैंने रियलाइज किया इंग्लिश मुझे कि अब लग रहा है कि आप स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट पे जा रहे हो कि उल्टा जा रहे हो, अगर आप उनसे समझ रहे हो। एज इन मतलब जैसे कि आई एम उन्होंने जस्ट बहुत सारे किडिंग, लोगों बट ने, हाँ मतलब बहुत हर सारे एक लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट कॉमिक्स आप, हाँ नहीं मतलब कोई बहुत भी सारे लोगों प्रोडक्ट ने लेते हो तो कॉमिक्स कुछ ना कुछ निकाले। सीखते हो। हाँ हाँ, वही मतलब कि क्या प्लस है क्या माइनस है उनका। जैसे किसी का आर्ट अच्छा है तो किसी का स्टोरी लैकिंग है, तो किसी का स्टोरी अच्छा है तो उसका फॉलो अप नहीं है। तो मतलब मैंने देखा कि बहुत लोगों ने कॉमिक्स बनाए, पर उन्होंने जैसे एक कॉमिक था जो जिनके दो मतलब उन्होंने 2 चैप्टर बनाए, पर एक साल में एक, दूसरे साल में एक, और उसमें स्टोरी में हार्डली कुछ कंटेंट आगे बढ़ रहा है, और उसका आर्ट बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने आर्ट में ये किया है, अपना टाइम दिया है। पर वो ये कि उसपे मतलब मैं 2 चैप्टर पढ़ के बाद भी मुझे स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो वही है कि तो उस वो भी मुझे लैकिंग लगता है, और फिर किसी-किसी का स्टोरी है पर आर्ट फॉर्म अप टू द मार्क नहीं है। तो उसके बेसिस पे मतलब फ़ॉलो अप मैंने एक नोटिस किया कि लोग कॉमिक बनाते हैं, फर्स्ट चैप्टर बनाते हैं, फिर सेकंड चैप्टर या तो सोचते नहीं है बनाना है, तो अगर बनाना है तो वो कुछ नया ही बनाता है जो ज़बरदस्ती लिंक्ड अप होता है तो फर्स्ट चैप्टर, या फिर वो 8 महीने बाद आएगा या 1 साल बाद आएगा। तो और फिर बहुत सारी स्टोरीज़ खत्म ही नहीं होती है। 2-3 मतलब उन्होंने 2-3 चैप्टर्स बनाई हैं, फिर उन्होंने अपने लाइफ में बिज़ी हो गए या कुछ और आर्ट फॉर्म मतलब ये करने लगे, तो वो स्टोरीज़ इनकम्प्लीट है वहाँ पे। तो वैसे केसेज़ में मतलब ऐसे बड़े पब्लिशर्स का नहीं बोल रहा, जो छोटे पब्लिशर्स जिन्होंने ट्राई किया है करना। तो उस केस में मुझे लगा कि इवन कंसिस्टेंसी इवन बड़े इम्पोर्टेंट है पब्लिशर्स का और भी वही स्पीड हाल है। इम्पोर्टेंट। हाँ, मतलब बड़े अभी पब्लिशर्स वो का भी भी है वही कि हाल है। हम बोल सकते हैं, मतलब आप मत उसके लिए बोलिए, हम बोल मुझे सकते हैं। स्पीड ज़्यादा वही। तो इसके लिए मुझे वो तो स्पीड चाहिए और नहीं कंसिस्टेंसी चाहिए थी मुझे वो। नहीं, बट आप यू आर अ वेरी क्यूरियस केस, राइट? आप एक पब्लिशर भी हैं, राइटर भी हैं। आपने एक साल में मतलब 7 बुक्स भी निकाल ली, 30 पेजेस, हुँ, और एज समबडी हु हैव रेड इट नाउ, उसका आर्टवर्क काफी अच्छा है, राइट? एंड स्टोरी भी अच्छी है सरप्राइजिंगली बहुत, मतलब मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? मैं या थैंक तो यू। नहीं कहता अगर मुझे पसंद नहीं आई होती, हुँ, ठीक है? आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं मांगा रीडर नहीं हूँ। मैं वही हुँ, आरसी का मूवी वाले डायलॉग्स देख के पला बड़ा हूँ, उसी में मुझे मजा हुँ, आता है। हुँ, कलरफुल मुझे वही दुनिया लगती है। बट हुँ, व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग योर बुक्स, राइट, और जैसे कि अब मेरे लिए था कि अब मैं क्या पढ़ूँ, राइट, कि मैं मांगा पढ़ता नहीं, तो मैंने पावर प्ले से शुरू किया। एंड मुझे, और ना कैसा हुआ कि मैं देख रहा हूँ कि एक इंडियन स्टोरी मुझे चल रही है, बट एक एक दूसरे फॉर्म में चल रही है, मतलब कि जो किरदार है हुँ, वो उतने इंडियन नहीं लग रहे हैं, ठीक है? हुँ, तो अब जैसे जालिम मंगा और ये सब मैंने देखा ना, तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मतलब मे बी जो आर्ट फॉर्म डिफरेंट होता है, वो एक मुक्का अगर है, एक बायोनिक आर्म है, तो कैसे लंबा हो रहा है वो, पहले मुझे लगता है ये कैसा आर्ट बना है, आर्टिस्ट को आर्ट नहीं आता है, बट अब समझ में आया कि अच्छा ये हुँ, जो स्टोरी टेलिंग है इसका फॉर्मेट ही ऐसा है कि ये फाइट अगर हुँ, हो रही है तो ऐसा होगा, आंखों में ऐसे एक्सप्रेशंस आएंगे और ये करके। तो तो जब मैंने पढ़ा ना, तो मैं सरप्राइज हो गया, यार ये तो काफी अच्छा कंटेंट है। हमें सब स्टैंडर्ड चीजें देख के ऐसी हालत हो गई है ना कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि चीज अच्छी हो सकती है, ठीक है? इवन जो दूसरा सिक्स पाथ का था ना, उसका फर्स्ट फर्स्ट पेज ने ही मेरा दिल जीत लिया था। जो सिक्स आपके मतलब पार्ट्स हाँ। भारत बोलो, और मतलब व्हेन पीपल डू अ प्रॉपर फ्यूजन, ठीक है, जो जो हुँ, चीजें उसमें कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मतलब, तो आई लाइक इट। ये और ब्रेकअप इवन राइट, ये मेरे को बहुत अच्छा हाँ, लगा था। और इसमें हुँ, थैंक हायरोग्लिफिक्स, यू। मतलब ये जो यहाँ पे किया है ना, जो कैलीग्राफी, जो 6 आपके व्हाट हुँ, एल्स से फॉर्म्स के लिए, राइट, आई हाँ, आई रियली लाइक्ड इट, राइट? सोल्स ऑफ तो और जो तीसरा वाला है वर्ल्ड बियॉन्ड, राइट, तो उसमें भी हुँ, इवन जो स्टोरी है शुरू हुई ना, तो आपको थोड़ा सा फीलिंग आएगी हंगर गेम्स की, हुँ, कि राइट, हंगर गेम्स प्लस प्रेडेटर की, ठीक है, क्यों शिकार पे हुँ, जा रहे हैं कहीं पे, हुँ, एंड ऑल, ठीक है? और तो मतलब आई आई एम मतलब एक प्रॉपर, मतलब एज ए, मतलब ट्रेडिशनल इंडियन कॉमिक्स फैन, राइट, उसको एक स्टोरी जो इंडियन परिवेश में हो, बट उसको एक डिफरेंट
स्वाद से आपने दिया है, राइट? जैसे हम करते हैं ना अपना फ्राइड राइस या नूडल्स इंडो चाइनीज करके, So it's राइट? basically an Indian story जो एक ग्लोबल फॉर्मेट में है. ठीक है, और ग्लोबल It's not फॉर्मेट purely manga format. It's a generic format जो सबके लिए चले, या ऐसा ग्लोबल फॉर्मेट है, क्योंकि और उसके एकदम भी बाद जापानीज कैरेक्टर्स नहीं है. एकदम नहीं है, राइट? इवन जैसे मैं पावर प्ले पढ़ रहा था, तो उसकी जो लड़की है तनिषा, वो लड़की मतलब इंडियन वो दिख रही है, Indian- बट जो हीरो है अनुज है जो, वो आपको दिख रहा है कि हाँ ये शायद एनीमे से निकल के आया है, राइट? बट उसमें आपने नाम भी सारा वेंकट और मोटू और ये सारी चीजें पूरा वो इंडियनाइज्ड किया हुआ है. एंड इवन जो मतलब व्हेन आई वाज रीडिंग द बुक्स, राइट, आप बोल रहे हो कि आप इनएक्सपीरियंस आर्टिस्ट को लेके आ रहे हो, बट अगर आपके इनएक्सपीरियंस आर्टिस्ट ऐसा आर्ट कर रहे हैं तो फिर मैं बाकियों के बारे में क्या कहूँ कि बिकॉज इट्स मतलब वेरी नाइस टू सी सी मतलब लुक एट, ऐसा कुछ मतलब उल्टा सीधा नहीं है, मतलब कि ठीक है पावर थोड़े प्ले वाला 2021 ही है, आई थिंक. वो अभी भी कॉलेज में है, जो पावर प्ले का आर्टिस्ट है. So he's They are 2021. incredibly good. हमने अभी रिसेंटली काफी कॉमिक्स पढ़ी है जिसमें काफी लोगों ने इंटरनेशनल आर्टिस्ट को भी लाके हल्ला मचाया कि दे आर ब्रिंगिंग आर्टिस्ट फ्रॉम ब्राजील एंड समवेयर, कि वो आर्ट देख लो एंड योर आर्ट इज वे बियॉन्ड. एंड आई वाज मतलब आई एम लाइक यू. मेरे को कॉमिक्स में आर्ट इज 30% एंड मेरे को 70% स्टोरी चाहिए. अगर स्टोरी अच्छी नहीं है तो आई ड्रॉप द कॉमिक्स. एंड मेरी जब भी पहली बात हुई, मैंने लोगों से कहा कि स्टोरी इज अमेजिंग. मेरे को स्टोरी पढ़ के बहुत टाइम बाद मजा आया है. And that's what I like. पावर प्ले का एक पेज है जिसमें वो 6 बॉल पे 6 शॉट्स मारता है, ठीक है, Right. और वो जो छक्का मारता है ना, वो दिखता है कि वो मतलब कि जो जो दिखाना चाहता है, एक स्टोरी टेलर बताना चाहता है ना कि उसने इतना बड़ा छक्का मारा है कि बॉल इतनी ऊंची हवा पे गई है, और यह कवर ड्राइव उसने मारा है, एक फील्डर के हाथ के पास जा रहा है वो है, तो मतलब वो जिसने भी करा है ना उसका मतलब आई कैन सी कि उसने आपकी सोच को, हाँ ये तो फर्स्ट पेज है, उसके बाद में एक में 6 पेजेस में वो मार रहा है, चाहे पूरा एक फ्रेम में एक पेज में पूरा ओवर हो रहा है, ठीक है. तो ये ये तो जो हर एक शॉट डिफरेंट है, वो जो फील्डिंग कर रहा है हाथ उसका लंबा हो गया, ठीक है. इवन उनकी जो बियॉन्ड वाली बुक है, ठीक है, उसमें जब वो एक साइलेंट पेज है जिसमें वो एक शिकारी को खा जाता है, जो आपका ये है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो टीरेक्स जैसा जो मतलब राइट, जो एनिमल होता है, एनिमल होता है, राइट. तो वो हर एक चीज है. इवन जो पूरा योगा वाला जो फाइटिंग है आपकी 6 पार्ट्स में, राइट, जो वो योगा का जो लड़का होता है ना, जो वाइट वाला, जो ब्लाइंड का वाले का बेटा होता है, आई फॉरगॉट द नेम, राइट, लाइक जो योगा मास्टर होता है, जो अनिरुद्ध, राइट. सो ऑल हिज फाइटिंग सीन्स, राइट. सो मतलब अपने हर एक किरदार ना फन क्या आता है ना, कि अब मुझे समझ आ रहा है कि जैसे अमित भाई और अंशुल भाई बोलते थे मांगा के लिए कि आप जब उनको किरदार को देखो ना, आपको उनकी पावर का अंदाजा नहीं होगा जब तक वो रिवील नहीं करते कि कितना पावर है और ऐसा करके. तो आप सोच रहे हो कि अरे ये तो ऐसी मस्ती मारने वाले किरदार है, ठीक है. फिर जब फाइट थोड़ी परवान चढ़ती है तो देन वो धीरे धीरे उसमें घुसते हैं, राइट. इवन जो एंड आई थिंक मैंने जब आपका फर्स्ट और सेकेंड में ना एक्चुअली स्टोरी काफी बढ़ रही है. ऐसा नहीं है कि मतलब और व्हाट आई लाइक कि आपके हर स्टोरी के बाद में आपने बोला है कि अगली स्टोरी में क्या आने वाला है, राइट. देयर इज अ पेज small विशेष synopsis. राइट, स्मॉल सिनॉप्सिस, राइट. देन ही गिव्स हिज इंट्रो कि मैं एक टेकी हूं पर मैं फिर भी कॉमिक कर रहा हूं, ठीक है. तो which is very funny because हमारे जैसे ये जो वाला पेज है, राइट. तो जैसे हमारे भूपी भाई थे, ठीक है, भूपी भाई भी इतने जोश में आए थे इनकॉग्निटो जब निकाली उन्होंने, ठीक है, ये है. और बट वो उन्होंने अपने एक गलती जो बोला भी कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही डाइवर्स्ट कर दिया कि मैं एनिमेशन भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, सब चीजों को मैंने देखा है पॉडकास्ट, राइट. तो एक्चुअली आपको लीन भी होना पड़ेगा कि अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग और कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको लीनली काम करना पड़ेगा कि आप वो हर आपको मिनी बजट में निकाल रहे हो. तो जैसे आप है, राइट, आपका जो आर्टिस्ट है वही लेटरिंग करता है,
जो मतलब हाँ हर एक के लिए। तो किस्सा कॉमिक्स के सिर्फ सोल फाउंडर आप ही हैं, एवरीबडी एल्स इज जस्ट फॉर पर प्रोजेक्ट बेसिस, इज इट फेयर टू से? या बट और नितिन मंथली मेरे साथ काम करता है, बाकी दो आर्टिस्ट है वो पर पेज के हिसाब से काम करते हैं। तो नितिन इज तो अंडर नितिन वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट और बियॉन्ड जब तक है आप, तब तक नितिन है वैसे, मतलब तो नितिन आपने वर्ल्ड बियॉन्ड मतलब देखेगा। आपने तीन तीन जो टाइटल्स हैं उनका आपने डिसाइड कर रखा है कितने पार्ट्स हो रहे हैं? हाँ एक्चुअली सो कैसा है कि इनिशियली तो मैंने सोचा कि लिखता हूँ जैसे स्टोरी चलता है, पर वही है कि मतलब वो इतना सस्टेनेबल और इजी नहीं है कि आप जैसे जापानीज में वो लोग वीकली मांगा निकालते हैं और 15-20 पे उनके ऐसा पूरा टीम होता है, एक लेटरिंग करेगा, एक बैकग्राउंड्स करेगा ऐसे। तो वो उनकी तो तो अगर असेंबली हम है पूरी। हाँ तो अगर हम ज़्यादा पुश करके एक आर्टिस्ट 6-8 घंटा काम करके भी सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पे, तो 2 महीना तो लग ही जाता है एक प्रोजेक्ट को, 2-2.5 महीना। तो उसके हिसाब से, लेकिन वही है कि मैं अभी कितना, मतलब अगर मैं इसे बनाते जाऊँ तो फिर मुझे सेलिंग के लिए एक फेज नहीं मिलेगा। तो मैंने हर एक को ऐसे वॉल्यूम्स में डिवाइड किया, तो वर्ल्ड बियॉन्ड 5 चैप्टर में फर्स्ट स्टोरी खत्म हो जाएगा, मतलब मेन स्टोरी खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो होगा कि मैं उस यूनिवर्स को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि नहीं, या बना मेरे पास बजट है क्या बढ़ाने के लिए। तो वर्ल्ड बियॉन्ड 5 चैप्टर में होगा, पावर प्ले 3 चैप्टर में होगा, और 6 पार्ट्स अभी उसका कोई एंड है नहीं मेरे दिमाग में। तो वो आई थिंक वो भी 5 या 6 तक मुझे एक तो आर्क खत्म करना पड़ेगा, ताकि फिर मैं नेक्स्ट आर्क चालू करूँ ऐसे कुछ। तो 5 वर्ल्ड बियॉन्ड, 5 6 पार्ट, और पावर प्ले 3 ही चैप्टर्स के होंगे। तो एक और सवाल पे आते हैं, किस्सा कॉमिक्स क्यों? सो मुझे कोई इंडियन नाम चाहिए था, और विच फोकसेस ऑन स्टोरी एंड आर्ट। तो उसके लिए तो वही मैं बहुत सारे चैट जीपीटी के साथ बैठ के मैं एक ढूंढ रहा क्यों था नहीं कि यूज किया, वर्ड्स क्या क्यों है क्यों जो, यूज किया? हाँ वो क्यों ज़्यादा Why did हटके लगता है एज अ लेटर rather देन ओके। क्यों। तो क्योंकि उसके लोगो भी बनाओ अगर आगे जाके मैं कुछ अच्छा, तो क्यों ज़्यादा सूट करेगा नो नो के से। पर न्यूमरोलॉजी और नहीं नहीं वर्ड प्ले केम इनटू फैक्टर। नहीं, कि गाय वो भाई सब ज्योतिष वाला नहीं, इसको क्यों से लिखो, बिल्कुल सही, तुम्हारी कॉमेडी अब चल पड़ेगी। सो विश्वेश, कमिंग अप टू राइट, तुम एट द स्टार्ट यू मेंशन राइट कि आपका स्कोप है कि एक एक आर्क सारी बुक्स का सॉरी कंप्लीट सर, करके देन यू विल, डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। हेलो। या सो एट द स्टार्ट यू मेंशन राइट कि द योर लॉन्ग टर्म प्लान इज कि पहले तीनों बुक्स का एक एक आर्क कंप्लीट करके यू विल फोकस ऑन सेलिंग पार्ट, राइट? सो यू आर नॉट दैट मच फोकस इनटू सेलिंग एज ऑफ नाउ, अभी पहले आर्क को कंप्लीट करना है, राइट? जो भी 6-7 बुक्स हैं हर मतलब जैसे सीरीज की। जैसे जैसे एड चलती है जैसे, और जो बनी है वो मैं चैप्टर सेल करता रहता हूँ। तो हम्म, मतलब वो, मतलब ऐड ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कभी-कभी आप ₹1000 का ऐड स्पेंड करते हो और ₹800 का बुक बिकता है, या ₹500 का बुक बिकता है। हम्म, कभी-कभी ₹500 में ₹1000 का बुक बिक जाएगा, पर ओवरऑल तो लॉस में ही है, जो मतलब मैं अपने प्रॉफिट से ही नहीं, कर रहा हूँ। पर एटलीस्ट मुझे ऐसा है कि मैं एक थोड़ा लेगेसी छोड़ रहा हूँ कि एक मैंने स्टोरीज़ लिखे हैं, बने हैं। कोई अगर इंटरनेट में सर्च करेगा इंडियन कॉमिक्स में, उसको कुछ तो मिलेगा मेरे बारे में, और वो बुक्स तो हमेशा रहेंगे, आईपीओ एग्जैक्टली, होगा रवि भाई भी यही आगे। बोल के गए थे 1.5 साल पहले जब आए हाँ। थे कि तुमने लिख दिया, राइट? 10 साल बाद, मतलब हुँ, इवन जब विजेंद्र भी आया था उसका भी सेम कहानी था। ठीक है कि आप लोग जो राइटर्स होते हो ना, आप लोगों को ऐसा ये है कि कहानी कहनी है, ठीक है, क्या हाँ, एग्ज़ैक्टली। राइट? और मतलब ये जो, मतलब आपने जब ये शुरू करा, राइट, तो आपने क्या एक अलग से लिक्विड फंड रख रखा था कि आपको पता था आप कितना अमाउंट डालने वाले हो ये सो मतलब पूरी पब्लिकेशन पे, या जस्ट थोड़ा शुरू किया? फिर कैसे होता है ना कि जैसे हम कलेक्टर से कुछ होते हैं ना, हमें थोड़ा सा नशा चढ़ जाता हुँ, है, फिर पैसे हुँ। पैसे नहीं देखते, फिर लेते आते हैं और फिर बाद में देखते कि भाई ये क्या कर दिया। तो ऐसा तो कुछ रियलाइजेशन अभी तक हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं कि मेरा रेवेन्यू सोर्स ज़ीरो है, तो मेरा डाटा उससे रेवेन्यू तो आता है। तो रेवेन्यू आ रहा है इधर, और मैंने सिर्फ इतना सोचा कि 1 महीने में इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए एक्सपेंसेस। अब सो मैं टोटल करता नहीं हूँ, कि टोटल करूँगा तो बहुत बुरा लगेगा मुझे। नहीं, वो तो तो है। बात वही है ना कि आप खर्चा कर आप दिया, उसको मतलब अभी भी अगर मैं करूँ हॉबी कि ले इतने रहे टोटल हो मैंने खर्चा कि किया, और हमने सॉरी, नहीं, जैसे होता है ना कि हॉबी, जैसे सॉरी भूपेंद्र डिस्कनेक्ट हो भाई ने गया। कहा था कि ये तो मेरा हॉबी के पैसे है, ये मैं हाँ, उड़ा देता, उसकी जगह कॉमिक्स बना रहा हूँ। लोग हाँ, नहीं हॉबी की तरह नहीं ले रहा आपको हूँ ये भी मैं, मतलब मैं अगर
वर्कआउट होगा तो अगर अच्छे से वर्कआउट होगा तो आई विल गो फुल इनटू इट। पर मेरा ऐसा है कि ये कि अभी मैं मुझे वो कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि वो मुझे डिप्रेसिंग होगा कि मैं गिनूँ कि मैंने इतना खर्चा किया और मुझे रिटर्न, मतलब मैंने ऐसा किया और मेरे 10 लाख खत्म खर्चे हो गए और मुझे 2 लाख मिला। तो फिर वो देख के मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। तो मैं वैसे नहीं चेक करता, तो मैं सिर्फ सेल्स देखता हूँ कि सेल हो रहा है और महीने में मैं इतना ये कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तो ये खर्चा तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए है, तो ठीक है, आपको वो जितना बाद स्ट्रेस में नहीं होगा। होगा, आपके परिवार वालों को जब पता चलेगा ना, तब ज्यादा स्ट्रेस मैं रहेगा। मैं परिवार इसके लिए मैं परिवार पे आने वाला था। आपने जब भी मतलब घर पे अनाउंस किया होगा कि आप कॉमिक्स पब्लिश कर रहे हो, राइट, या समथिंग, व्हाट वाज द रिएक्शन एट होम? मतलब ऐसे तो मतलब अभी तो मेरे घर में मैं और मेरी वाइफ ही है एंड शी सपोर्टिव फॉर दैट। तो आधे शिपिंग तो वो ही करती है बेचारी, मतलब मैं बुक्स डाल देता हूँ, वो सेलो टेप लगाती है, या मैं बुक्स दे देता हूँ वो पहले तो थैंक यू नोट भी लिखती थी हर एक कॉमिक के साथ, फिर अब बोर हो चुकी है, अभी नहीं लिखती। तो तो फिर तो वो सपोर्टिव है, उनको पता है कि मतलब ऐसा नहीं कि मेरा का मतलब एक मेरा बिजनेस है, वहां से पैसे आ रहे हैं। और मैंने तो वैसे मतलब हम उससे पहले ट्रैवल करते थे, तो मेरा एक सास बिजनेस है, तो वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आप एक बार दे दो तो आपको फिर से मेंटेन करना होता है, आपको उस पर काम नहीं करना। तो वो लकीली उस वो वर्क करते हैं मेरे लिए, कि वैसे पहले मैं खाली बैठता था, ट्रैवल करता था, अभी मुझे, पर उनको वो एक अच्छा है, क्योंकि वो एक बीच का एक फेज था जब मैं कुछ नहीं करता था, तो मैं बहुत अनोइंग हो गया था कि जो मिड लाइफ क्राइसिस हो, सब लोग बिजी है, मैं क्या करूँ ऐसे। तो वो वाले फेज से तो मतलब उससे अच्छा है कि मैं बिजी रहूँ, कुछ करूँ, भले वो ऑर्डर शिप करके प्रिंट करके शिपिंग करने का काम हो या स्क्रिप्ट लिखना। तो वो एक उनके लिए भी अच्छा है कि मेरे लिए कुछ तो पैशन है बियॉन्ड दिस। तो अभी मेरे लिए मेरा मेन काम तो यही चलता रहता है कि या तो स्क्रिप्ट लिखो या तो ये करो। और कभी कभी जो मेरा बिजनेस साइड है उसमें सपोर्ट कभी कुछ देना है या कुछ देखना है, तो कोडिंग वाला वो देखना है। तो इट कीप्स मी बिजी, वो अच्छा है, और मतलब थोड़ा कम स्ट्रेस में बिजी रखता है। सो आपने अभी वर्ड मेंशन किया प्रिंटिंग, सो मैं एक चीज पे मैं मतलब आई जस्ट वांट टू नो योर सीक्रेट, जो मैं मोस्ट प्रोबब्ली बाकी पब्लिशर्स को फोकस करना चाहूंगा। योर क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग इज वेरी गुड। जो मैंने रिसेंटली बुक्स में, इट्स अ हम्म रेयर थिंग टू बी फाउंड, क्योंकि रिसेंटली जो भी हमें इंडियन बुक्स मिलती थी, हम उनकी बाइंडिंग या उस वजह से काफी परेशान रहते थे। सो मैंने आपकी बुक को लेके ना एक एक पेज यूं यूं करके मैंने देखा कहीं से स्टेपल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, बट इट्स अ गुड वर्क। तो ये मतलब ओके। इज इट समथिंग, आपका लोकल प्रिंटर हु यू आर गेटिंग इट डन एवरीथिंग? हाँ, एक्चुअली ये तो मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करता, मैं 50-100 प्रिंट्स ही करता हूँ। मुझे वो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया, और पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि 1000 कॉमिक बुक पब्लिश की है। हेलो, आई थिंक मैं हाँ डिस्कनेक्ट हो जी। रहा हूँ, सॉरी। तो मतलब कि मैं हमेशा 100-200 100-150 प्रिंट्स ही करता हूँ। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं 1000 प्रिंट करूँ और फिर बेचूँ। तो पता नहीं लोग कैसे करते हैं, मतलब उससे कॉस्ट कम होगा, पर मैंने 100 करके 3-4 बार प्रिंट किया, और कभी-कभी उससे आपको फ्रीडम भी मिलता है, अगर मुझे अपना टेक्स्ट चेंज करना है, प्रीव्यू चेंज करना है कुछ, तो वो हो जाता है, या करेक्शन करना है प्रूफ रीडिंग का कुछ। तो उसके लिए लेकिन मैंने अब तक 4 प्रिंटर चेंज, मतलब मैंने पहले तो ऑनलाइन ही एक दिन सबसे पहले मैंने इंडी कॉमिक फेस्ट में ये किया था, सेल किया था। तो अगले दिन फेस्ट था और मैंने ज़बरदस्ती नितिन को बिठा के 2 दिन पहले कैसे तो उसको फिनिश किया। और मॉर्निंग को मैंने ऑनलाइन ढूँढा कि ऐसे ऑनलाइन प्रिंटर्स कौन है, सेंड टू प्रिंट है, प्रिंट ऑन वेब ऐसे। तो सेंड टू प्रिंट में जाके मैंने सुबह प्रिंट किया और शाम को मिला। तो वो इतना खास नहीं था, और एक्सपेंसिव भी, 90 रुपीज़ पर पेज पर बुक पड़ गया था उस टाइम। तो वो मैंने सेल किया था। फिर उसके बाद मैंने ऐसे ऑनलाइन 2-3 ट्राई किए। सब में मेन प्रॉब्लम होता था कि मैंने एक येलो बॉर्डर बना दिया, क्यों पता नहीं मुझे, स्टार्ट हो जो ये वो कोई ठीक से प्रिंट नहीं करता था। तो या तो या राइट का येलो बॉर्डर उड़ जाता है, ऊपर का जाता था, या तो कहीं न कहीं वो ज़्यादा हो जाता था। उसके से मैंने 3-4, अगर कुछ-कुछ लोग को मैं पुराने बुक्स भी कभी-कभी देता हूँ, तो उसमें तो येलो लाइन ऊपर-नीचे होता है। तो फिर उस केस में फिर ऐसे 3-4 चेंज करके बाद लोकली मुझे, मतलब मेरे घर से 10 मिनट्स दूर है, एक प्रिंट, मतलब मेरी वाइफ ने ही ढूँढा, तो उनके पास जाके मैंने करवाया। तो उनसे मैं फिज़िकली बोल पाया, तो मैंने उनको बताया कि येलो लाइन को आपको मेंटेन करना है प्रॉपर्ली और ये सब। और जो अंदर का ये है प्रिंट है, वो 100 जीएसएम है। तो आइडियली वो सही नहीं है मांगा के लिए, मतलब जो मांगा प्रिंट्स होते हैं वो थोड़े येलोइश पेपर पे और थोड़े थिन पेपर पे होता है, तो जो ऐसे टेरेबल टाइप होता है। तो राइट। वो ज़्यादा सिंपल भी होता है, पर मुझे वो कभी ऑप्शन दिखा ही, मतलब मुझे वो किसी वेंडर ने बताया नहीं कि उनके पास अवेलेबल है क्या।
तो फाइनली मैंने ये प्रिंट से किया, और इस पे लोग बोलते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही आप खर्चा कर रहे हो प्रिंट पे, ये कुछ ज़्यादा ही थिक है। पर Yes, I would ये also comment सेफ है। that papers are thick. पर हाँ, पर वो सेफ है कि मतलब अभी मैं कुछ अभी चेंज करने जाऊँ, फिर एक 100 बैच आएगा जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। तभी ये जो प्रिंटर वाला है उससे पता है कि कैसे करना है, तो आई गो। पर इसका भी मुझे ऑलमोस्ट 65 रुपीज़ पर बुक पड़ जाता है। तो और प्लस 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ प्रिंट शिपिंग का चला जाता है। सो मोस्टली प्रॉफिटेबल होता है अगर कोई 3 बुक खरीदे या सातों बुक एक साथ खरीदे। सो वो एक है कि जैसे चैप्टर वाइज़ है, और अगर मैं बाद में वॉल्यूम्स बेचूँ, तो वॉल्यूम मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन देगा कंपेयर टू सिंगल चैप्टर। पर वही है कि अगर मैं आपको एक बुक दूँ और बोलूँ मैं आपको 7 बुक दूँ और ₹1000 का, तो आपको लगेगा ठीक है, वैल्यू फॉर मनी है। तो आपने मतलब कब सितंबर अक्टूबर 2024 व्हाट व्हिच अगस्त वाज द डे? स्टार्ट किया था स्क्रिप्ट लिखना, और जो फर्स्ट बुक प्रिंट हुई थी वो अक्टूबर के अराउंड हुई थी, सितंबर एंडिंग या सितंबर के कोई तो डे में ये इंडी कॉमिक फेस्ट का इवेंट था, तो उसके लिए सबसे पहली बुक प्रिंट हुई थी। अच्छा। तो सितंबर, अभी 1 ईयर 1 मंथ 2 मंथ्स हो गया अगर मैं जो स्टार्टिंग पॉइंट दूँ। So पब्लिश how के हिसाब से अभी 1 ईयर हुआ है। how has been the reception? मतलब सो सो इन टर्म्स ऑफ सेल्स काफ़ी हुए हैं कि मेरे से वर्ल्ड बियॉन्ड का सबसे ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू ये। और फिर मैंने कॉमिक कॉन में भी, मुंबई कॉमिक कॉन में गया था, वहाँ पे भी का मतलब इट्स वेरी एक्सपेंसिव, रिकवर तो नहीं होता कॉस्ट, बट हमने फिर 350 कॉपीज बेचे, मतलब ऐसे 70,000 रुपीज़ लेके स्टॉल लो, और हमने कुछ 65-70,000 का सेल किया, तो ऐसे but प्रॉफिटेबल 350 copies is good number, right जीत भाई, जो बाकी को हमने गुड सुने। नंबर। हाँ, 350 कॉपीज, मतलब सात मेरे तभी 5 चैप्टर्स थे या 6 चैप्टर्स थे शायद, तो उसके अराउंड 650 कॉपीज गए। और ऑनलाइन भी मेरे मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड बियॉन्ड आई थिंक 1000 कॉपीज तो गया होगा थ्रू डिफरेंट चैप्टर्स सब मिला के। सो एंड आपकी वैसे बुक्स सारी ऑनलाइन ही अवेलेबल है, राइट? नॉट थ्रू द रेगुलर शिप वेंडर्स, राइट? प्लान करना है, पर मुझे पता नहीं कि कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करूँ, कि लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कट होता है उनका। अगर उनका कट अगर ज़्यादा होगा, ऐसे 100 रुपीज़ या 70 रुपीज़ हर एक बुक पे होगा, तो मुझे हार्डली कुछ मार्जिन मिलेगा और मुझे एक्सपेंसिव नहीं बेचना है। तो वो मेरा एक था कि मतलब मुझे एग्जिस्टिंग कॉमिक्स से भी वो जैसे बोला स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि कुछ लोग मतलब इट्स फाइन कि आपका आर्ट है, आप उसको किसी भी प्राइस पे बेच सकते हो, तो वो आपका कॉल है। पर उसके बाद आप ये नहीं सोच सकते कि लोग खरीद रहे नहीं है, इंडिया में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको वो थोड़ा कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉमिक बेचोगे तो कम लोगों को ही रीच होगा आपका कॉमिक। तो अगर आपका एक मोटिव है कि आप ज़्यादा लोग को रीच करना चाहते हो, तो आपको एक प्राइस पॉइंट भी अफोर्डेबल रखना पड़ेगा, क्योंकि तो आपकी जैसे आपकी 32 पेज की एक कॉमिक कितने की है? अगर हमारे जैसे जो 179, ऑडियंस मतलब सिंगल बुक 179। 179, हाँ। तो वही कि राइट। अगर आप 3 बुक करोगे तो 400 रुपए में आपको मिल जाएगा, तो क्योंकि मेरा मुझे शिपिंग ना कॉस्ट बच रहा है। सौम्य बंटी जो हायरोफेंट एंटरटेनमेंट चलाता है उसके याद आ रहा है कि उसने कहा था लोगों को कि एक कैडबरी की में तुम किताब खरीद सकते हो, इससे हाँ, सस्ता वो और मैं मतलब वो कर तो है नहीं कि सकता। वो तो है कि कॉफ़ी, मतलब आपकी कॉफ़ी पी मतलब बाहर खाने-पीने में लोग उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं, पर नहीं नहीं, वो वहां तक ई-बुक नहीं पे नहीं जाते करते हैं। हाँ, हैं। उससे उससे आप बहुत ट्रोल हो जाओगे। हाँ। नहीं, दैट इज अ वेरी गुड प्राइस पॉइंट फॉर 30 पेजेस की इसके लिए किताब के मतलब लिए अगर आपको। मैं जितना हो सके उतना अफ़ोर्ड रखता हूँ। हम्म। और आपने कैसे आपका फिर मतलब प्रोलिफरेट कैसे करा? इंस्टाग्राम इज योर मेन प्लेटफॉर्म और हाउ हाउ और सिर्फ जब हाँ, आप जाते हो मोस्टली मतलब। इंस्टाग्राम में हम्म। ऐड चलते हैं। तो हम्म। वही है कि अभी मैं अगर उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करूँ, ज़्यादा बेटर वीडियोज़ बनाऊँ एड्स के, तो वो ज़्यादा हम्म। ज़्यादा भी बिक सकते हैं, मतलब ज़्यादा रेट में। हम्म। अभी ऐसे 2-3 सेल्स होते हैं दिन में। तो अगर मैं उसको अच्छे से बनाऊँ, तो अगर ज़्यादा वायरल वीडियो बनाऊँ तो और भी हो सकता है। फिर कभी-कभी हम्म। जब सेल्स होते नहीं है तो मैं फ्रस्ट्रेशन में रेडिट में डाल देता हूँ प्रमोशन, तो फिर 1-2 सेल्स वहाँ से हो जाते हैं। तो हम्म। वहाँ पे मतलब वो एक है, पर वो ऐसा स्केलेबल नहीं है कि अब जब-जब मैं कुछ पोस्ट डालूँगा कि ये आर्टवर्क है, ये सेकंड चैप्टर रिलीज़ हुआ, तो 2-3 सेल्स आएँगे। फिर बाकी जो इंस्टाग्राम में जो फ़ॉलो करते हैं कुछ लोग, जैसे-जैसे नए चैप्टर्स आते हैं वो खरीदते हैं,
बाकी बहुत सारे लोग नए रहता है, जब जब एड्स दिखता है तो वो खरीदता है। सो और फिर जब भी इवेंट होता है इंडी कॉमिक फेस्ट, कॉमिक कॉन या तो वहाँ पे सेल होता है। तो मैं एक चीज़ मैंने अच्छा नहीं किया कि मैंने कम्युनिटी नहीं बना पाया हूँ। मतलब मुझे वो स्टार्टिंग से करना चाहिए था, एक कम्युनिटी बनाना चाहिए जो पढ़ रहा है, पर वो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और पर उसके लिए मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल रहा है कि मैं उस पे फोकस करूँ अलोंग विद एज ए वन स्क्रिप्टिंग मैन एंड आर्मी इट्स वेरी टफ, राइट? आपको ये भी करना है, मतलब कॉमिक्स लिखनी भी है, कॉमिक्स बनानी भी है, कॉमिक्स के लॉजिस्टिक्स भी देखने हैं, सेल भी करना है, राइट? देन मार्केट भी करना है, एंड देन आपको ऑनलाइन कम्युनिटी भी बनानी है, और उस बीच में अपने आप को अपलिफ्टेड रखना है, क्योंकि एज ए क्रिएटिव, राइट, कि क्रिएशन पे फोकस करो कि उसकी प्रमोशन पे फोकस करो, वो हमेशा एक कैच 22 हो जाता होगा, राइट? कि मतलब कई बार फ्रस्ट्रेशन आ ही जाती है ना, मतलब इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अगर आप देखो 1 साल हो गए, राइट, आपने 12 सबसे साल ज़्यादा किताबें लिखी। फ्रस्ट्रेशन तो इंडिया में लॉजिस्टिक्स पे होती है कि अभी जैसे मैंने ये बना के रखा है, ये कल पिक होना चाहिए था, पर वो पिक होगा ही नहीं। 2 दिन तक 3 दिन तक पिकअप होगा ही नहीं, फिर उनको मैं कॉल करूँ, फिर उनसे बोलूँ, फिर कई बार वहाँ जाएगा, वहाँ पे उनको डिलीवर नहीं होगा और फिर उनसे फिर कस्टमर से आएगा कि वो डिलीवर, तो मतलब वो मेरे भी हाथ में नहीं है, लॉजिस्टिक्स वाला भी दे नहीं रहा है और मेरा पूरा पैन इंडिया चलता है, तो आसाम से, मणिपुर से, वहाँ से भी ऑर्डर्स आते हैं। सो अभी वहाँ पे जाते-जाते टाइम भी लग जाता है और वहाँ पे मुझे पता नहीं कितना अच्छा उनका डिलीवरी का सिस्टम होगा। मतलब हर एक मतलब डीटीडीसी का अलग होता है, ई-कार्ट का अलग होता है। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझे शिपिंग कंपनी को हैंडल करने में होता है। बाकी तो फिर भी ठीक है। पर ये पेमेंट लोग का ऐसा गेटवे है का कि आप वो कोई टेंशन नहीं लेते हो? नहीं, वो तो हाँ, हो जाता है पेमेंट, मतलब रेज़र पे से हो जाता है। ऑनलाइन लोग ऑर्डर करते हैं वैसे। मुझे So, वो एक्सप्लोर करना है कि कॉमिक्स कैफ़े या ये सब में कैसे मैं दे सकता हूँ, पर वही है कि वो ऑफ़लाइन मेहनत है कि मुझे जाना पड़ेगा, लोग से बात करना पड़ेगा। फिर उनको बुक्स भेजने पड़ेंगे, जैसे प्राइस, अभी मैं प्राइस ऐसे लिखता नहीं हूँ बुक में क्योंकि बहुत ही रैंडम प्राइसिंग में मैं सेल कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मुझे एमआरपी सेट करना होगा। तो वो बहुत ज़्यादा काम है जो एज़ अ वन पर्सन में भी मैं अब अवॉइड कर रहा हूँ, या तो मेरी स्क्रिप्टिंग हो के बाद, सब बुक्स हो के बाद मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आपकी मोस्टली बुक्स इंस्टा के थ्रू या ऑनलाइन ही सेल होती है, राइट? सो मेरा एक क्वेश्चन है वो जो मेरे को ऑफलाइन पब्लिशर्स कभी नहीं बता पाएंगे, हु आर बाइंग योर बुक्स, मतलब यू नो पीपल, राइट? यू नो कि किस या जनरेशन, मतलब विच एज ग्रुप इज बाइंग योर बुक्स? आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन तो नोइंग दैट। सो एज, मतलब एज ग्रुप भी एग्ज़ैक्टली मैं नहीं बता सकता, पर वही कि तब भी एक 20s रफ 30s आइडिया। वाले, 20-30s वाले या अभी। बेसिकली दुग्गल साहब अपने आप को संतूर भाई प्रूव करना चाहते हैं कि मैं भी वही पढ़ रहा हूँ जो आज के 20 साल के जनरी नवयुवक पढ़ पढ़ रहा रहे है। हैं। नहीं, मतलब 30s वाले भी करते हैं ऑर्डर, मतलब 20s 30s वाले करते हैं। थोड़े उसके ऊपर जो रहता है वो अपने बच्चों के लिए करता है एक्चुअली, मतलब ऐसे हुआ है कि मुझे लग रहा है कैसे कि बोले, देखा? दुग्गल साहब वो हम मतलब लोगों के लिए, मतलब राइट? हाँ, मतलब किसी ने और मतलब मैंने व्हाट्सएप से बात होती है कभी-कभी, ऑर्डर नहीं हुआ, तो मुझे पता है कि वो मतलब थोड़े बड़े हैं ऐसे, फिर वो बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए ले आऊँ, तो मैंने कहा समझा, अच्छा उनको नहीं पढ़ना है, उनको बच्चों के लिए। और इसमें कॉमिक-कॉन में ऐसा बहुत होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे कॉमिक्स और उन सब में जाएँ, क्योंकि सब मोबाइल करते हैं। तो वहाँ पे बहुत पेरेंट्स हैं जो पुश कर रहे थे कि ये लो, तुम लोग हमेशा जापानीज़ माँगा करते हो, इंडिया में भी बन रहा है, इनका क्यों नहीं लेते हो? और फिर वो खरीदते थे। तो अभी वो भी एक सिचुएशन ऐसा है कि जो 30-40s है, जो कॉमिक, ट्रेडिशनल कॉमिक वाले फैन हैं, उनके पास पैसा है, वो खरीदेंगे। उनकी मतलब आई थिंक मैंने सुना था कि राज कॉमिक्स का ऐसा वो ऐसा मिंट एडिशन, हेलो? जो ऐसे पूरे वॉल्यूम्स होते हैं, वो हज़ारों-हज़ारों में लोग लेते हैं। तो वैसे उनके पास पैसा है, और जो माँगा है, जो जेन ज़ी है, उनके पास पैसा नहीं है, पर उनका क्वांटिटी पॉपुलेशन बहुत है। तो वो भी ऐसा हो जाता है कि जिस अगर माँगा आप टारगेट करो और उनको ये बेचो, तो उनके पास वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो पॉकेट मनी का वेट करेंगे या उनको पैसे मिलने का वेट करेंगे। और ये जो क्राउड है वो बहुत नीश है कि इसमें भी 1000-2000 लोग ही रेगुलरली कॉमिक्स बाय करते हैं। तो उनके लिए आप वो ऐसे मास नहीं बन पाए, मतलब आपका ब्रांड इतना मास नहीं बन पाएगा। वो लोग खरीद लेंगे, पर वो मतलब एड्स करूँगा तो मुझे एक बहुत ही छोटा ऑडियंस है जो कॉमिक्स रीड करता है और इतना यूज़्ड टू है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने जब आपका पहला कवर देखा ना, तो मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं हुई। इसे प्लैनेट देख के मतलब मुझे लगा कि कोई साइंस की किताब मुझे पकड़ा दी जाएगी, राइट? नेशनल ज्योग्राफिक की। हाँ, राइट। तो वो जो येलो वो येलो बॉर्डर और वो जो आपके प्लैनेट्स है ना,
वो एक्चुअली बहुत ही मतलब आपने क्या सोच के ऐसा कवर बनाया, आपको क्या लगा वो था? मतलब अभी वो जैसे मैंने बोला कि वो इंडी कॉमिक फेस्ट के लिए मैंने बनाया था, तो उस टाइम मैंने कवर बनाया ही नहीं था हमने, तो हमने सिर्फ इंटरनल पेजेस कंप्लीट किए थे और उसके बाद हमें करना था मतलब पब्लिक प्रिंट करना था, तो उसके बाद जो फर्स्ट पेज था वही मैंने कवर पे डाला, उसको किस्सा कॉमिक्स का ब्रांडिंग के लिए येलो डाल दिया और उसमें अपना नाम लग दिया, तो वो मेरा फर्स्ट कॉमिक ऐसे बन गया जिसका कवर कभी बना ही नहीं है। तो अभी ऐसे हो गया कि अभी वो प्रिंट होके इतने बार बिक चुका है, अब मुझे चेंज करने के लिए थोड़ा मतलब डिफिकल्टी उस है कि वो कॉमिक्स का ना जो वीक पॉइंट मुझे वही लगा कि वो कवर की वजह से मैंने खोला कवर। ही नहीं काफी हाँ, टाइम तक, और जब मैं पढ़ा तो मैंने कहा यार ये तो कहानी अच्छी है। तो वो डोंट जज अ क्योंकि बुक आप बाय देखो इट्स कवर सेकंड लिटरली। में, हाँ, ये सेकंड में आप देखोगे तो उसमें एक प्रॉपर कवर बनाने की कोशिश की है सेकंड या थर्ड में। फर्स्ट वाले में कॉमिक में हमने कवर ही नहीं बनाया, हमने फर्स्ट पेज को ही ऐसे कवर यूज किया था मैंने हाँ, ये जो जल्दी है ना, जल्दी में। ये वर्ल्ड बियॉन्ड जैसे हाँ आप दे दोगे ना तो ऐसे ऐसे लिटरली ऐसे हाँ, एक फीलिंग आएगी। हाँ मतलब ये देखिए इसमें अभी लग रहा है कि फीलिंग कोई से, कॉमिक आप पढ़ने वाले हो। उसमें ऐसे लग रहा है हाँ ना कि कोई किसी ने मतलब चिल्ड्रन नॉलेज बैंक या कुछ ऐसा मतलब फिलोसफी वाला हाँ, कुछ पकड़ा दिया गया है, राइट? ये मैंने भी बोला था नियो कॉमिक्स जो डॉक्टर मनीष, हम्म। उन्होंने जब रिव्यू किया तो उन्होंने कि ये क्यों किया है, ऐसा क्यों है, तुम्हारे पास डायनासोर था अंदर, तुम्हें वो छोड़ के ये प्लैनेट क्यों रखे, ये डायनासोर this का is, रख देते। but this was हाँ, quite ये an पेज opening को, for a book. हम्म, This was very nice opening. ये तो मतलब वही मतलब मैं वही है ना कि कई बार ऐसा लगता है कि उसी वजह से पूरा मेरा रिलक्टेंस था कि यार क्या है ये किताब, आके आराम से पढ़ूंगा ये करके, और मैं पढ़ रहा हूँ तो यार ये तो काफी अच्छी किताब है। तो फिर ये कवर मतलब मतलब वो बिल्कुल ही काउंटर नहीं हो गया, मैं राइट ये। नहीं रहेगा, मतलब कुछ उसको एज अ बैकग्राउंड में रखूँ और उसके ऊपर कोई और एक आर्ट डालूँ या और डायनासोर को स्पेसिफिकली वो डाल दूँ येलो फिर। बॉर्डर से एक्चुअली नेशनल ज्योग्राफी की फीलिंग आ रही है, वो प्लेनेट के हाँ साथ जो तुमने सामने अभी कहा कि हाँ यार ये क्या है, राइट? और हम लोग, मैं अभी इस पॉडकास्ट से पहले भी अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, अमित से, मैंने उसको कहा कि यार अमित यार आर्टवर्क बहुत अच्छा है, तो मैंने बुक भी नहीं पढ़ी थी, मैं जैसे ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, ठीक है। वो तो आपके पावर प्ले ने आपको बचा लिया क्योंकि क्रिकेट आ गया था, तो मैंने बोला चलो यार ये किताब से शुरू करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो फिर ठीक, राइट। और फिर मैंने बोला कि यार मैंने इसके इमेजेस देखे, मैंने यार ये तो बहुत बढ़िया आर्ट वर्क है। तो अमित भी बोला यार ये है, बट वो पढ़ नहीं पाया, वो थोड़ा बिजी था ये करके। तो हम लोगों को तो पहले प्लेजेंटली सरप्राइज होता है कि एक टाइम था 3 साल पहले, हम बाइंडिंग अच्छी निकाल दी किताब की तो हम खुश हो तो लेते हम थे। खुश हो जाते थे। खुश हो जाते थे कि हमारे हमारी सुख मतलब हमारी खुशी की परिधि बहुत छोटी है। हम मतलब हाँ, हमने एक्सपेक्टेशन इतने गए गुजरे एक्सपेक्टेशन के साथ हम लोअर शुरू रखते होते हैं थे। ना कि हमें कुछ भी अच्छा मिल जाता है तो हम मतलब अरे ये क्या है, ठीक है। तो वही कि एक तो जैसे जैसे काफी हम लोग तो फेसबुक में काफी एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो हम हाँ लोग क्योंकि हम एक डिफरेंट जॉनर को बिलोंग, जॉनर तो हाँ नहीं कहेंगे, जनरेशन एज ग्रुप। एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। हमारे यंग इंसान आज आए नहीं है, अमित भाई, ठीक है, जो कि बट मतलब मैंने बट देखे है वो ग्रुप, तो वही है कि मुझे वो ग्रुप में पता नहीं कैसे मैं घुसूँ अंदर या कैसे मैं उसमें कंट्रीब्यूट करूँ, कि वो बहुत राज कॉमिक्स और वो ओरिएंटेड लगता है कि मतलब ऐसे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने ज्वाइन किया, पर उसमें वो नागराज और उनके ही फोटोज डालता है, और अगर मैं कुछ डालूँ तो भी मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो देखो पता नहीं हम कि भी मैं जब इस कैसे ग्रुप में आए थे, उसमें मैं भी इन्वॉल्व जब हो इस ग्रुप जाऊँ में ऐसे। आया था ना, तो सब हम लोग आरसी फैन ही है, हम वहीं जाते हैं, ठीक है। हाँ इन वही। लोगों ने मुझे चेंज किया 3 साल पहले, 2 साल पहले, ठीक है। फिर मैंने बोला यार एक मतलब मैं कुएं का मेढक था, मैं कुएं में खुश था। जीत भाई आरसी के ओके, अलावा कुछ ट्राई नहीं करते थे। कुछ मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मैं वो घटिया मतलब घटिया तो नहीं बोलूंगा, अच्छे। हाँ देखो ये कुत्ते से सूरत, गौर से देखो इसे, हाँ मैं हूँ, मैं कुत्ता, आई एम वेरी हैप्पी ऑन दोज डायलॉग्स, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने स्वाद दिलाना शुरू किया। अबे अच्छा, कहानी ऐसी भी लिखी जाती है, आर्टवर्क ऐसा भी होता है, ठीक है। अब मांगा भी 3-4 पढ़ ली तो अब ये हुआ है, बट अब डर लगता है कि कैसे ना कि हमारा ना जैसे खून मुंह लग गया और फिर ना वो एक नशे में घुस जाते हैं ना, तो बिल्कुल फिर पागल ही हो जाएंगे, ऐसे ऐसा टाइप का हो जाता है, ठीक है। वो फिर बुक मटन वाले की खाने वाला ये इंसान वापस पनीर नहीं खा पाएगा। राइट। तो फिर तो इसीलिए भी थोड़ा रुक जाते हैं कि थोड़े टाइम के बाद वापस एक आरसी की किताब उठा लेते हैं और फिर से पढ़ने लगते हैं, ठीक है। बट वो जो ऑडियंस है ना वो हिंदी वाली है, उसको इंग्लिश से तो जो इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं ना उनके लिए कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर इफ दे आर लुकिंग फॉर स्टोरीज, क्योंकि अगर आप देखोगे आज आज कहानियों की अभाव है। साल में कितनी ही नई किताबें आ रही हैं, पहले मतलब कोविड के बाद 40-40 50% ऐसे काउंट होता था बुक्स का, ठीक है। अब जैसे एक किताब आई थी अवनी करके,
पेपर स्केच कॉमिक्स की, मुझे अच्छी लगी थी। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की एक कहानी पे करा था, बट उसकी नेक्स्ट बुक आई नहीं, 2 साल हो गए। ठीक है, तो तो वो कई बहुत बार ना होता है फिर इससे। जैसा, हाँ, तो और उन्होंने काफी मार्केटिंग पे भी काम किया था। उन्होंने मतलब छोटी अवनी के भी कुछ कुछ कॉन्टेस्ट रखे थे और ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, तो मतलब दीज आर ऑल लॉजिस्टिक्स, मतलब सब चैलेंजिंग है। इवन लाइक विजेंद्र, वो जेन नहीं बोल रहा, विजय जब आया था राइट, टेक्निकल लवर्स का, उन लोगों को अभी ये फेसबुक में थोड़ा सा बवाल हो गया था कि 6 महीने में दूसरी किताब नहीं आई है करके, तो फिर थोड़ा सा ऑफेंड हो गया था अपना उत्साह, राइट। लेकिन बट लोगों का यही है ना कि वैसे हम आ जब रही है आते ना हैं शायद सैटरडे, से अभी। हाँ आ ही रही है, बट हमारे पास सैटरडे संडे और कोई काम नहीं होता है। तो फेसबुक ग्रुप में किसी एक चीज को लेके उसमें बकवास होने शुरू हो जाती है, राइट। तो अगर आप वहां पे मतलब आयल से कि अगर आप वहां घुसने जाओगे ना, तो इस तब के लिए अपने आप को तैयार कर लेना। ठीक है, कि उसको दिल पे नहीं लेना ये चीज है। कॉमिक्स की बट आई बात थिंक करने वो अपने आप में ही बड़ी चीज है, कि बिगेस्ट अच्छा अचीवमेंट फॉर बुरा यू सुनो। बिगेस्ट अचीवमेंट हाँ। फॉर यू इज 12 महीने में 7 किताबें। मतलब आई वाज सरप्राइज, मेरे को बात करके पता चला एक साल, मैंने सोचा 2-3 साल पुरानी होगी, मेरे को नहीं मालूम था एक ही साल हुए हैं। आपको आपके हाँ, पास 6 ही बुक है ना, आपके पास 6 चैप्टर्स है। हाँ मेरे पास 6 है। पावर प्ले का सेकंड नहीं, नहीं है आपके पास। हाँ, हाँ, और अंशुल भाई इसमें ना ऐसे भी नहीं कि स्प्लैश पेज घुसेड़ घुसेड़ के नहीं नहीं पेज कुछ भर नहीं दिए है, हैं। राइट, नॉर्मल वो पूरी कहानी स्टोरी कहानी चली के है। साथ। वो भी एक्चुअली ये कुछ हद तक वही है कि मुझे वो कॉस्ट इफेक्टिव रखना था। तो जैसे मतलब मुझे इन्होंने भी बोला नियो कॉमिक्स वालों ने कि आपके पास कोई ऐसा एक सिंगल पेज का ये नहीं है, स्प्लैश पेजेस नहीं है, तो वो आर्ट वर्क के दिखाने के लिए वो अच्छा रहता है। पर वो ये कि वो हर एक पेज का पैसा जा रहा है मेरा, तो मुझे वो ध्यान रखना पड़ता है कि मैं 4-5 पैनल तो डाल रहा हूँ एक पेज पे। तो अभी नए बुक्स में आपने देखा रहेगा एक-एक पेज पे नहीं, एक-एक मुझे पूरा मुझे आर्ट वर्क मुझे है। उससे कोई कंप्लेंट नहीं है। मेरे नहीं को मुझे ऐसे भी कोई स्प्लैश पेज वो की कोई वो नहीं है, नहीं। जबरदस्ती स्प्लैश पेज डालने का कोई फायदा भी नहीं है, अनलेस यू आर तो इसमें आप सम देखोगे कि रिमार्केबल और मूवमेंट नहीं बन रहा है ना, तब तक स्प्लैश पेज का हाँ, मजा भी नहीं है। हाँ। जैसे वो 30 पेजेस में भी एक्चुअली कंटेंट उससे ज़्यादा लगता है कि क्योंकि वो पैनल्स थोड़े छोटे-छोटे पैनल्स थोड़ा कॉम्पैक्ट हम्म। है करके स्टोरी तो काफ़ी लोगों को लगता है बस ये मतलब एक बार कॉलेज में मैं सेल कर रहा था तो वो ऐसा उन्होंने देख के लगा कि क्या है इसे तो 10 पेज है, 10 पेज का पैसा ले रहा है ऐसा। पर उसमें एक्चुअली है पूरा स्टोरी मतलब आप अगर वो स्टोरी देखोगे तो एक मतलब सिर्फ़ हंट है तो हंट नहीं होता, हंट के बाद भी होता है, उसके बाद भी एक ट्विस्ट है और उसके बाद फिर एक फ्लैशबैक भी है। ओपन एंडिंग। फ्लैशबैक हाँ, हंट है, उनके बाद फ्लैशबैक है। फ्लैशबैक के बाद एक विज़न है और उसपे एक शॉकिंग एंड है ऐसे। तो इतना सब कुछ एक ही बुक में हो रहा है। तो मतलब मुझे वो भी चाहिए था कि लोग अगर एक चैप्टर पढ़े तो उनको एक एक एपिसोड वाला तो फ़ील आए कि मैं एक एक एपिसोड देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स सीरीज़ का। ऐसे नहीं हाँ कि मतलब मैंने वही है ना, सिर्फ़ सिर्फ एक लड़ाई चल रही है, 4 मुक्के मारे, ये मारे, किताब के एंड में उसका वही शिकार हो गया वहीं पे। शिकार के बाद हाँ, क्या वही हुआ जानिए अगले पार्ट में 6 महीने बाद। हाँ, वही। तो वही कि कॉलेज फेस्ट में मैं सेल करने गया था, तो वहाँ पे भी उनका वो बुक के साइज़ को देख के लग रहा था उनको कि ये 10 पेज का बुक के लिए 100-150 माँग रहे हैं। पर उनको वो नहीं पता कि उस वो 30 पेज की बुक में काफ़ी सारा स्टोरी है, क्योंकि मेरे हर एक पेज में बहुत पैनल्स हैं और वो काफ़ी कॉम्पैक्ट फॉर्म में है और इसमें काफ़ी सारी मतलब एक हंट पूरा कवर हो रहा है। उस हंट के बाद एक फ्लैशबैक आ रहा है, उस फ्लैशबैक के बाद एक विज़न है, विज़न में एक क्लिफ हैंगर है। हम्म। Yep. तो इंडिया में आज की डेट में एक एक जो से एक मांगा सिंगल की बुक पे है और क्योंकि लोग उसके साइज़ वॉइस कट ही रही है, राइट। हम्म। चलिए ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा टॉपिक वैसा हो गया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ अगर सुनाई दे। इंडिया में आज की डेट में मांगा का प्राइस क्या है, मतलब एक जो सिंग कॉपी आता है उसका प्राइस क्या है? हुँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर द प्राइसिंग बिटवीन योर बुक एंड द नॉर्मल मांगा। सो मतलब जो आप जापानीज़ माँगा की बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, मतलब आई नो वो सेकंड है, मतलब हाँ, फोटोकॉपी बिकती है, बट आई एम लुकिंग जो ओरिजिनल बिकती है उसके और आपके में क्या डिफरेंस है? ओरिजिनल में वॉल्यूम्स में बिकती है, तो हाँ हाँ, एक वॉल्यूम का लोग कितना होगा? ऐसे ₹1000 में पूरा बड़ा वॉल्यूम लेंगे। तो वो डिफरेंस मतलब 1000-1200 वाले बुक्स होते हैं। तो आई डोंट नो कन नहीं, वॉइस भी ब्रेक हो रहा है नहीं विशेष। अटक रहा है। हाँ बहुत ज्यादा। आप फोन से ज्वाइन करना चाहेंगे क्या?
सिल्वर पे बेटर हाँ मैं ट्राई करता रहेगा, हूँ। राइट? बाबा होश हो गए, तब तक आप एंटरटेन करो हमारे ऑडियंस को। अरे मैं मैं अरे वही मैं सुन अच्छा रहा था। बताओ, क्या किस बारे में पॉडकास्ट हो रहा है? अरे तुम लोगों ने एकदम मेरे को सरप्राइज टेस्ट में डाल दिया है यार, कैसे पता रहेगा? तुम लोगों ने तब मैं बोला कि ठीक है आ जाता हूँ करके। ये बाबा हमें कॉलेज की फीलिंग दे रहे हैं कि इनको आगे लेक्चर में बैठ गए, अब पूछ रहे हैं क्या लेक्चर चल कौन सा लेक्चर चल रहा है? अरे राइट, मतलब हमारा चैनल इतना बड़ा हो गया कि पब्लिशर्स अब हमें रीच कर रहे हैं टू फीचर। दैट्स अमेजिंग, बहुत सही है यार। राइट, और उसके बाद हमने उन्हें भी आपका कॉस्ट नहीं बताया कि विवेक के चेहरा दिखाने का कितना लगता है एंड ऑल। तो नहीं वही भाई पूछ ऐसा रहे कुछ नहीं है, विवेक की मुंह दिखाई के अलग पैसे होंगे इस कि पॉडकास्ट। अलग कैसे होंगे इस पॉडकास्ट ऐसा पे। कुछ नहीं है भाई। यस, हेलो, हाँ अब विशेष, बेटर ये है। तो काफी सुनाई बेटर दे है। रहा है आपको? हाँ बेटर है। ठीक है। सो यस, सो कमिंग टू क्वेश्चन, हम कॉलेज वाला तो अभी छुएंगे नहीं, बाद में छुएंगे, वो मनहूस हाँ, क्वेश्चन लग वो रहा है। पनौती है वो। तो क्वेश्चन ये है, मतलब जो भी एक मतलब मांगा वॉल्यूम्स में आती है, तो मैं जैसे एक अटैक ऑफ टाइटन्स का एक सिंगल वॉल्यूम लूं, उसका क्या प्राइसिंग होगा इंडिया में? आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर योर बुक विद मांगा का हाँ प्राइसिंग, तो क्योंकि एक्चुअली आपने बोला ना कि जाकिर मान, तो बेसिकली वही क्वेश्चन ये था कि बुक का कंटेंट और बुक का मतलब नंबर ऑफ पेजेस और कंटेंट में कैसे डिफरेंस है। तो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था कि एक दो बार हुआ है कि कॉलेज में लोगों ने बुक को देख के बोला कि इसमें तो 10 पेजेस है, क्या ही है इसमें स्टोरी, पर एक्चुअली वो 30 पेजेस की बुक में बहुत ज़्यादा बड़ा आर्क कंप्लीट होता है। तो राइट। उसमें एक मतलब ऐसे नहीं कि आप देखो और एक फाइट हो गया और ख़त्म हो गया, और मतलब कोई स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही है, तो स्टोरी वाइज भी काफ़ी बढ़ती है। मतलब एक पूरा हंट है, फ्लैशबैक है, और एक विजन है, फिर एक क्लिफ हैंगर है। तो ऐसे 3-4 प्लॉट्स कवर हो रही है उस स्पेस में। सेम विद सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, वहाँ पे नए कैरेक्टर्स भी आए और उनका भी स्टोरी आगे बढ़ा। सो यूजुअली कॉमिक में काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि आप कैरेक्टर डेवलप करो या मतलब क्योंकि आपके पास लिमिटेड पैनल्स होता है, या तो आप बहुत बड़ा लंबा खींचो तब जाके लोग कनेक्ट होंगे कैरेक्टर से। मतलब अगर आप उसको उसे फाइट करके दिखा दो तो जैसे फॉर इंस्टेंस 6 पार्ट्स में स्टार्टिंग में ही उसके ग्रैंडफादर मर जाता है, तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप उससे कनेक्टेड ही नहीं हो, तो वो मरेगा ही। करेक्ट। तो वही कि लेकिन आप वो 6 कैरेक्टर 6 पार्ट के 4 कैरेक्टर से कनेक्टेड, अगर आगे जाके सेकंड या थर्ड चैप्टर में अगर मैं उनको मार दो या कुछ हो जाए उनके साथ, तब आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नहीं, वो तब एक भी ट्रेड ठीक ऑफ है, है कि बट आप जब उसके ग्रैंडफादर मर जाते हैं तो अब भी आपको लगता है कि वो मतलब एक रिवेंज स्टोरी हो जाती है, कुछ आपको एक पिवोट तो मिल रहा है कि फेवर जिस मिलता वजह है, से हाँ। कि वो जो बंदा है, जो छोटा बच्चा है, उसको याद तो रहेगा वो इंसिडेंट, राइट? और उसी के बाद वो अपने ग्रैंडफादर का ही सीख याद रखता है, ठीक है, हाँ, और वो वो ही कहती कार्ड को है। जला के जिससे वो भाग जाता है, राइट? तो निकल पाता है। हाँ। या सो वही की स्टोरी है उसमें काफ़ी लोग, मतलब आप बुक का साइज़ देख के जज नहीं कर सकते हो कि इसमें कुछ हो नहीं रहा है वैसे। तो आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि काफ़ी डेप्थ में स्टोरी है और काफ़ी काफ़ी कंटेंट है उसमें। हाँ, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने जब आपकी बुक पढ़ी तो मुझे पुराने टाइम के याद आ गई, जब मैं कॉमिक्स पढ़ता था और काफी स्टोरी हुआ करती थी ओके। कि आर्क चल रहा है, और मतलब तब आप देखते हो कि ये चीज हो गई और अभी आप सिर्फ 15 पेज पे ही पहुंचे हो। देयर आर हुँ, मोर थिंग्स हैपनिंग, राइट? हुँ, ओके। यस आपको दिपेन सर। पर्सनली वन शॉट पसंद है या सीरीज़ पसंद है? मुझे अ, मुझे ना, देखो हम लोग का कैसा नहीं कि जो भी मिल जाए वैसा टाइप का रहता है। वन शॉट मतलब पसंद ही रहेगी ना, क्योंकि खत्म हो गया है करके, आपको हुँ, वेट नहीं करना पड़ रहा है। बट हुँ, आरसी ने हमें ये आदत लगा ली है ना कि हम वेट भी इंडेफिनेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक हुँ, है। और क्योंकि हम इंडिया ट्रिप में आए थे, हम एक किताब उठा देते, राइट? हुँ, तो वैसा हो जाता था। तो अभी भी यही है कि मतलब अगर मिल गई, राइट, की स्टोरी खत्म हो गई तो मतलब बहुत ही सही है, ठीक है। बट हुँ, एटलीस्ट ये स्टोरी मूव होनी चाहिए। अगर हुँ, एक चीज हुआ है, नेक्स्ट में कुछ आलतू फालतू चीज चल रहा है जिसका पिछले हुँ, वाले से अगर एक कोई किताब में चले ना नेक्स्ट पार्ट में मुझे फर्स्ट बुक का थोड़ा भी मूवमेंट नहीं हुआ ना, तो मुझे बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है। हाँ, और एंड आई हमें हैव भी लगता सीन है। एटलीस्ट इन माई, जो मेरा फेवरेट स्टेपल है आरसी में, कुछ एक किताब नेक्स्ट पार्ट में जाता है, उसमें कुछ अलग ही चल रहा है, वो चौथे पार्ट में पता चलता है कि उसका कुछ और काम है, राइट?
तो वो मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है कि मतलब आप ठीक है, आप नया चीज इंट्रोड्यूस करो, बट पुराने पे जो थोड़े से सवाल है ना, उन पे थोड़ा तो मूवमेंट करो। कभी-कभी होता है कि ऐसा क्लिफ हैंगर में एंड करते हैं, पर वो क्लिफ हैंगर का सॉल्यूशन स्टार्टिंग में नहीं दिखाते नेक्स्ट चैप्टर में राइट और नेक्स्ट एपिसोड में, तो वो थोड़ा अनोइंग लगता है कि वहां पे छोड़ दिया, उसका हुआ क्या वो पता नहीं। यस राइट, क्योंकि फिर आप मतलब आप सेकंड बुक क्यों लेना चाहते हो फर्स्ट बुक के बाद? क्योंकि आपको लगता है कि फर्स्ट बुक के जो सवाल है वो उनका जवाब आपको दूसरी किताब में आंसर मिल जाएंगे। हाँ राइट, अगर आंसर नहीं मिलेंगे तो थोड़ी स्टोरी मूव होनी चाहिए। चलो आपने दूसरा बुक भी ले लिया और उसके आखिरी पेज में जाकर वापस फर्स्ट बुक का पहला आखिरी पेज आने वाला है, तो फिर क्या ही मतलब है उस कहानी का। ये चीज हो जाती है। यस दुग्गल साहब, कॉलेज मेरा के यही सवाल क्वेश्चन, के और क्या सवाल? मेरा यही सवाल था, मतलब कि कॉलेज मतलब विश्वेश ने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, मतलब ही इज नॉट रेडी इनटू दैट इंडियन कॉमिक्स और उतना सब, राइट? सो मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपकी पहली वाली थी बुक थी, वाज इट इंस्पायर्ड बाय स्टार ट्रेक और समथिंग? हाँ, वाज इट इंस्पायर्ड बाय स्टार वॉर्स, राइट? हाँ, तो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ऐसा हुआ कि मैं राइटिंग में जस्ट आ रहा था, 1-2-3 साल हुए थे, 2 साल ही हुए थे। तो मुझे ऐसा था कि पर्सनली मुझे एक अपने आप को एक्सरसाइज देना था वर्ल्ड बिल्डिंग का, कि मैं एक यूनिवर्स इमेजिन करूँ और एक-एक प्लैनेट इमेजिन करूँ। हर एक प्लैनेट में अलग कॉन्सेप्ट होगा बेस्ड ऑन वहाँ के लोग, वहाँ के एनवायरनमेंट। अगर स्नो होगा, मतलब स्नोई प्लैनेट होगा, तो क्या अंडरग्राउंड लोग रहते होंगे, या फिर अगर उस प्लैनेट में अगर सिर्फ एनिमल्स है, ह्यूमंस नहीं है, तो बाकी गैलेक्सी के लिए वो प्लैनेट ऐसा हो जाएगा कि चलो जाओ और हंटिंग करो। जैसे अफ्रीका में जाके आप हंटिंग कर सकते हो, एज अ गेम बोलते हैं जो। तो वैसे मैं इमेजिन कर रहा था, तो मैंने वो वेरिडिया प्लैनेट से स्टार्ट किया कि एक प्लैनेट है जहाँ पे ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स है, पर बाकी गैलेक्सी के लिए वो आके सिर्फ वहाँ पे ये करना है, हंटिंग करना है। पर किसी एक कम्युनिटी के लिए वो मोर देन अ हंट है, वो एक रिचुअल है। फिर एक प्लैनेट है जहाँ पे जो जैसे हम कहते हैं कि ऑयल अगर कहीं मिला, फिर वो नेशन को उसका ऑयल कर्स आ जाता है कि मतलब लोग वहाँ पे जाते हैं कि मतलब एक सैटेलाइट बन गया ताकि एक जगह से रिसोर्सेज ले ले, पर वो रिसोर्सेज खत्म हो गया तो वो सैटेलाइट में जो रह रहे हैं उनको सबने अबैंडन कर लिया। तो आप अगर ऐसे मेटल स्ट्रक्चर में रह रहे हो, यहाँ पे आप कुछ उगा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हो। और जो यूनियन जैसे अपना यूनाइटेड नेशंस होता है, जो वो आपको हेल्प करेगा पर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब आपको ऐसा रखेगा कि आप सर्वाइव करो, मतलब आपको मरने नहीं देगा, तो आपको एड दे देगा, पर आपको अपने जमीन पे लाने नहीं, मतलब कोई भी कंट्री आपको एज रेफ्यूजी एक्सेप्ट नहीं नहीं मिल रहा करेगा, माइग्रेंट रेफ्यूजी नहीं लेगा, पर आपको जितने चाहिए उतना खाना दे देगा, ये देगा कि आप वहाँ पे सर्वाइव करो और चलते रहो। आप कुछ मतलब पॉलिटिकली कुछ करो मत ऐसे। तो वो मेरा मतलब एक इंस्पिरेशन था। काफी डीप थॉट था। लेकिन मेरे को मतलब अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी, मेरे को जो पॉइंट लगा वो एक छोटा सा आपने इसरो का जो ईस्टर एग दिया था ना, हाँ हाँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, उसको आगे कैसे डेवलप करते हो? तो एक्चुअली एक इसमें प्रॉब्लम मुझे फेस हुई वर्ल्ड बियॉन्ड में कि ये फ्यूचर में सेट है, और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इंडियन ये कर रहे हो तो इंडियन कैरेक्टर्स कहाँ हैं, इंडियननेस कहाँ है उसमें। पर अब मुझे ऐसा हो गया था कि अभी मैंने फ्यूचर में सेट किया, मैं थोड़े नाम में इंडियन हिंट्स दे सकते, जैसे मारन एक है जो मतलब थोड़े थोड़े है ऐसे इस्टर, जैसे आयर है वो आर्यन से इंस्पायर्ड है, और चिल्ड्रन ऑफ डेविड है जो द्रविडियन से इंस्पायर्ड है। तो आर्यन वर्सेस द्रविडियन का मेरे को वो एक जूइश टच लगा था, मैं पूछने वाला था, बट मेरे को वो थोड़ा नहीं, जूइश नहीं। टच लगा था, तो मतलब स्टार मुझे ऑफ डेविड। एग्जैक्टली वैसे आर्यन या द्रविड ऐसा नहीं लेना था, तो मैंने उसको ऐसा एक वर्ड प्ले करके चिल्ड्रन ऑफ डेविड और आर्यन का एयर प्लैनेट और एरियन कर दिया था। तो वैसे थोड़े हिंट्स है, पर मुझे ऐसा कोई इंडियन कम्युनिटी नहीं, क्योंकि ऐसा है कि लोग यहाँ से अर्थ से निकल के, मतलब मेरा एक प्रीक्वल स्टोरी भी है कि अर्थ से जैसे सब लोग निकल गए अर्थ से, बिकॉज अर्थ अनइनहैबिटेबल हो गया, और फिर अलग अलग प्लैनेट्स में गए, और फिर वो लोग को पता नहीं कि हम अफ्रीका से, सब ह्यूमंस अफ्रीका से आए हैं, पर अभी एक दूसरे से झगड़ते हैं कि हम सुपीरियर है, तुम सुपीरियर हो वैसे। तो वो कंटेक्स्ट में था कि सब अर्थ से आए हैं, पर डिफरेंट प्लैनेट में अपना रिचुअल्स बना दिया, अपना कम्युनिटी बना दिया, और एक दूसरे से डिफरेंट बिहेव करता है। तो वैसे कॉन्सेप्ट पे था। तो उस केस में ऐसा था कि आप जब मतलब वहाँ पे जो लोग बने हैं उनको ये नहीं पता कि उससे पहले इसरो वहाँ पे आके सैटेलाइट रोवर वो सब चला चुका है, तो उनके पीसेस मिल रहे हैं। तो अगर जैसे कोई मार्स में भी जाएगा और वहाँ पे मार्स में क्यूरियोसिटी रोवर को देखेगा, मतलब सिविलाइजेशन सेट करेगा, तो उसको लगेगा क्यूरियोसिटी रोवर एक ये है कोई अपने टाइम से पहले का चीज है, जब हम इवॉल्व भी नहीं हुए थे तभी एक मशीन है यहाँ पे।
तो वो एक भगवान की तरह ट्रीट करेंगे। तो वैसे कॉन्सेप्ट में तो मैंने वो इसरो का एक पीस ऑफ मेटल एज अ भगवान का ये लिया और उसको एज अ एसआई के नाम से मतलब इंस्पिरेशन लिया। पर वही है कि मतलब इसका इतना भी रोल नहीं है कि वही कि इसरो का वैसे इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, पर वो एक हिंट था कि वहाँ के लोग का एक ओरिजिन इंडिया के इसरो से है, कोई नासा के लोगों से होगा। तो वैसे है कि अर्थ से हिस्ट्री उनका ओरिजिन है, पर वो उनको पता नहीं कि वो सब एक दूर के कोई सोलर सिस्टम में अर्थ करके प्लैनेट से आते हैं। जैसे आपने 3 कहानियां लिखी, तीनों अलग अलग है, राइट? एक आपका फ्यूचरिस्टिक या कोई दूसरे ही मतलब वर्ल्ड हाँ, में है, राइट? एक क्योंकि मैं आपका स्टार पास्ट वॉर्स में का लगता है। फैन हूँ, तो मुझे एक एपिक स्पेस सागा लिखना था, तो उसके लिए वो वर्ल्ड बियॉन्ड उसकी ठीक है, तो तरह एक आपका जैसे पास्ट का लगता है, राइट? कि वो तांगे में जा रहा है और ये सारी चीजें हो रही है, राइट? जो आपका 6 पाथ है, और एक लगता है करंट टाइम पे, जो कि आपका पावर प्ले का चल रहा है। दिमाग के किसी कोने में कभी क्रॉसओवर का कुछ विचार आया है? नहीं, फिलहाल अब तक तो नहीं, कि क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही अलग टाइमलाइन में। तो मेरा फर्स्ट तो वर्ल्ड बियॉन्ड से स्टार्ट हुआ था, फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो हिंदुइज्म और भारत किंगडम में एक्चुअली है कि 6 स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे। पहले ऐसे रिलीजन और इन सबसे पहले ऐसे 3 अलग-अलग स्कूल्स थे जिनके अलग-अलग विचार थे। तो उनका मेन था कि दुनिया कैसे बना है वो आंसर करना है। तो एक ने बोला कि आप जो दिखता है वही सच है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वैसे एक नया स्कूल ऑफ थॉट था। फिर वैसे ही एक था जिसमें सब कुछ एक पार्टिकल से बना है, एटम से बना है, वैसे वैशेषिक था। तो ऐसे एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री में है कि 6 स्कूल्स थे, उनमें से भी एक-एक स्कूल के 2-3 और पार्ट्स थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर एक सेकंड हेलो Yep. तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने सोचा कि मतलब वो एज अ बेस लेके तो मैं नारुतो टाइप कोई स्टोरी बता सकता हूँ कि डिफरेंट स्कूल्स है, डिफरेंट पावर्स है। सर मुझे एक और सवाल भी है, राइट? कि आपके पहले अटेम्प्ट के हिसाब से आपने बहुत अच्छा स्क्रिप्ट किया है। मैंने काफी कॉमिक से पढ़ी है कि उन्होंने की स्टोरी रहती है, पर वो कॉमिक की तरह से स्क्रिप्ट नहीं कर पाते, ठीक है? कि जो डायलॉग है और सीक्वेंशियल फ्लो होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि जो ऑथर की इंस्ट्रक्शन है ना, लेटरिंग में सिर्फ वही इंस्ट्रक्शन आते हैं, ठीक है? तो आप रीड कर रहे हो, एक आप कॉमिक्स की कहानी बोल नहीं रहे हो, तो आपको मतलब हाउ फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट हाउ कुड यू एज दैट? तो एक्चुअली व्हाट वर्ल्ड हेल्प यू? बियॉन्ड के इनिशियल मतलब फर्स्ट कॉपी के इनिशियल पेजेस में है वो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने भी थोड़े कॉमिक्स पढ़े थे, तब मुझे लगा कि लोगों को समझ नहीं रहा, तो मुझे उसको एक्सप्लेन करना पड़ा। तो राइटिंग में लोग, अगर आप किसी भी राइटर को ऐसा पूछोगे कि कुछ टिप्स, तो वही बोलेगा शो डोंट टेल। तो एक स्टैंडर्ड ये है टिप है कि आप बताओ, बोलो मत कि क्या हो रहा है, मतलब आपको दिखाना पड़ेगा वो। तो जैसे स्टार्टिंग के पेजेस में ऐसे था कि हंटर इज गोइंग टू अटैक द हंटर चार्जेस टुवर्ड्स द डायनासोर। ठीक है, तो वो मैंने पहले ऐसे लिखा था, पर वो गलत तरीका है कि आप बताओ मत कि क्या हो रहा है। तो उसके बदले मैं लिखूंगा कि हंटर का डायलॉग होगा कि आई विल किल यू नाउ और आई विल कट यू इनटू पीसेस। और वो चार्ज तो कर ही रहा है, आपको दिख ही रहा है, तो आपको मुझे वो बोलने की जरूरत नहीं कि वो चार्ज करे डायनासोर की तरह एंड ही गॉट सेव्ड। तो ऐसे नहीं बोलेगा, वो खुद से बोलेगा आई इट ऑलमोस्ट किल्ड मी ऐसे। तो वो जो है वो इनिशियली थोड़ा मैंने एक दो जगह में वो मिस्टेक किया था, पर मुझे उसके बारे में पता था पहले ही। पर मुझे वही था कि कॉमिक में मुझे शायद बताना पड़ेगा लोगों को कि क्या हो रहा है, कि थोड़ा स्पून फीडिंग करना पड़ेगा। पर उसके बाद थोड़ा राइटिंग के बाद मुझे समझा कि मैं उसको डायलॉग्स में भी कन्वे कर सकता हूँ और एक्शंस में भी कर सकता हूँ। इतना स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं कि लोगों फिगर आउट कर लेंगे। उतना तो मुझे ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि वो जो इमेजेस है और डायलॉग्स है उससे फिगर आउट कर लेंगे कि क्या हो रहा है। हाँ, मतलब एक पर फोर्थ वही कि मतलब मैं समय हूँ वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि कोई नरेट भी हाँ कर वो रहा है पीछे से हाँ कॉमिक्स पढ़ते-पढ़ते, राइट? वो कई कॉमिक्स में मैंने देखा है। और वो मतलब अभी मुझे पता नहीं कि वो एज अ स्टैंडर्ड है कि लोगों को ऐसे चाहिए कि कॉमिक ऐसे फॉर्मेट में हो, कि वो लोग राइटर ही ऐसे सिर्फ मतलब वो लिखने दिखा नहीं पाता है तो वो लिख देता है कि वो वो हर राइटर की एक्चुअली अपनी स्टाइल के हिसाब से होता है, स्टाइल राइट? होती है। कोई हाँ फिक्स हाँ फॉर्मेट नहीं है। बट हाँ, वही कंसीडरिंग है कि यू जो स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा है ना, उसको पता है कि किस तरीके से करना है। अगर वो सही से हाँ करता है तो आपका आउटपुट वैसा आता है, अगर वो नहीं करता है और वो छोड़ देता है तो लेटर तो वही पिक करके डाल देगा ना सीधा। हाँ लेटर तो वही कि तो आप अगर आप बोलोगे ये कैप्शन है, अगर आपका कैप्शन बहुत है तो आप समझा रहे हो कि क्या हो रहा है, कि क्यों हो रहा है। वैसे अगर आप वो उसको
जो वर्ड्स होता है या डायलॉग्स होता है या एक्सप्रेशंस होता है उसमें से अगर दिखा दो, तो फिर मतलब अगर आपने स्कैर्ड एक्सप्रेशन बना दिया तो उसके बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं, ही गॉट स्कैर्ड वाचिंग दैट ऐसे। यस। तो वो एक बार मैं भी सीख ही रहा हूँ कि कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर किस तरीके से मैं दिखाऊँ ज़्यादा देन बताऊँ कि क्या हो रहा है। मेरे आर्टवर्क और मेरे डायलॉग से ही समझ जाए कि वो कैरेक्टर कैसा है, और सबका कैरेक्टर का वॉइस होता है, वो भी डिफिकल्ट है कि वो वॉइस मेंटेन करो और यूनिक वॉइस। हम हर एक कैरेक्टर को अलग वॉइस नहीं दे सकते कि ये एरोगेंट है तो एरोगेंट ही बोलते रहेगा। तो ऐसे 2-4 ही ऑप्शन है, उसके बाद तो सब नॉर्मल साउंड करने लगते हैं। मतलब रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है कि, पर वही है कि वो थोड़ा डिफिकल्ट है कि मतलब आपको पता है कि वो क्या बोलेगा, पर ये कैरेक्टर किस तरीके से बोलना चाहिए, या और ये कि मतलब जो अगर कोई ये है एल्डरजा है, उसके बोलने में थोड़ा एक मैच्योरिटी होना चाहिए कंपेयर टू मारन के बोलने पे जो एक रेबेल है। तो वो भी मतलब कभी-कभी एक्चुअली वो है कि मैं डायलॉग्स रिवाइज करता हूँ लास्ट को, मतलब डायलॉग्स के साथ स्क्रिप्ट लिखता हूँ, वो स्क्रिप्ट स्टोरी बोर्ड होता है, स्टोरी बोर्ड के बाद आर्ट इंकिंग वो सब हो जाता है। फिर एंडिंग में वापस से मैं रिवाइज करके स्टोरी मतलब जो मुझे विजुअली दिख रहा है कॉमिक उसके हिसाब से मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। तो पर वो होता है कि अगर मैं डेडलाइन के साथ चल रहा हूँ तो कभी-कभी मैं भी जल्दी-जल्दी कर लेता हूँ, मैं ध्यान नहीं देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैंने वो वॉइस रखा है कि नहीं। पर ठीक है, ओवरऑल फिर भी जैसे-जैसे मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ, तो वैसे इम्प्रूव होते जा रहा है। मतलब फर्स्ट चैप्टर से सेकंड चैप्टर का बेटर होगा, फिर सेकंड से थर्ड वैसे। So भाई considering what we have known about you, मतलब you don't have a comics background, मतलब you are not an हाँ, reader, that much comics reader, and considering और जिस quality की books लाए हैं and the way you have been improving, I think it's a good work done, that I would say, right जीत भाई? यस। मतलब some of I think the इसीलिए people मैंने जब कईयों की ना, जो मैं पब्लिकेशन की फर्स्ट बुक पढ़ता हूँ, ये तो ठीक है, ये तो तब भी एक एक्शन सीक्वेंस है, वो हो रहा है। आई हैव सीन की चीजें पड़ी हुई है, इंसान वहां गया, उसने दायां देखा तो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बोला यार इसका क्या मतलब हुआ कि मैं वो हाँ, एक नरेशन भी चल रहा है और एक ये भी चल रहा है, क्योंकि क्या हुआ कि वो उन्होंने स्टोरी तो बता दी, बट उसको जब कॉमिक्स में कन्वर्ट करने गए तो दे कुड नॉट तो फिगर आउट कि उसको कैसे, अगर तुम दायां कैरेक्टर मुझे इमेज में दिख रहा है तो मेरे को ऊपर कैप्शन में भी देखने का क्या मतलब है। फिर मुझे लगता है कि यार उसको पता ही नहीं है कि वो कॉमिक कैसे लिख रहा है करके, राइट। मतलब कई और एक काफ़ी दो लोग जगह पे हो सकती है, बट पूरी काफ़ किताब अगर ऐसे होती है ना, तो फिर अगर हुँ, कहानी अच्छी भी हो पर आपका ना टेस्ट कम डाउन डैम्प हो जाता है कि भाई ये ना हुँ, ये कन्वे नहीं कर पाया, या इस चीज का मतलब एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है ना किताब के साथ, फिर हुँ, वो हुँ, वो एक चीज जाती है। यहाँ पे ना और विशेष मैं एक सवाल लेना चाहता हूँ जो हमारे मित्र अमित भाई ने बोला है। अमित इज वन ऑफ हुँ, द यंगेस्ट ऑफ आवर ग्रुप। यंगेस्ट मतलब क्या, 35 का होगा बट नहीं, 35 या 32 33 का कुछ होगा। उन्होंने ये ही सेड कि यू वांट टू नो योर थॉट्स अबाउट एआई फॉर राइटिंग एंड एआई फॉर आर्ट। सो मतलब मेरे पर्सनली ऐसा ये है कि आप मैं एआई को हेट नहीं करता कि उसके साथ कुछ नहीं करना चाहिए या ऐसा। आप उसको एज़ अ टूल को आप रिफाइन करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो वो अच्छा है। पर आप उसको एज़ अ क्रिएटिव यूज़ कर रहे हो, मतलब वो अगर क्रिएटिव डायरेक्टर है, तो वो गलत है कि तो फिर आपका काम नहीं है। अभी जैसे कि मैं उसको एक डायलॉग दूँ और बोलूँ कि कि इसको ऐसे साउंड करो जैसे कि मैं गुस्सा हूँ, तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा कि मुझे पता है कि क्या बोलना है। पर अभी मेरा वोकैब्युलरी एक लिमिटेड है, तो मुझे वो वर्ड्स नहीं पता जिससे मैं ज़्यादा बेटर उसको ये करूँ, तो उसके लिए मैंने उसको अल्टरनेटिव्स पूछा, तो मैं उसको यूज़ करके मैं उसको यूज़ करूँ तो आई एम फाइन विद दैट। पर मैं उसको बोलूँ कि तू पूरा स्टोरी बता दे या पूरा कॉन्सेप्ट कर दे या तू ही लिख दे, या तू आर्ट और आर्ट जनरेशन में भी ऐसा है कि अगर आप बना रहे हो और आपको कोई टायरसम काम है जैसे बैकग्राउंड का कुछ है, तो अगर उसमें कोई एआई यूज़ कर रहा है, सो आई वोंट मतलब मोस्टली एआई वर्क नहीं होना चाहिए। मेन आपका काम होना चाहिए, मतलब जो भाई आर्टिस्ट है, मतलब मैं आर्टिस्ट को नहीं बोलूँगा कि एआई यूज़ करे, पर अगर उसको कुछ हैशिंग के लिए या टेक्सचर के लिए अगर वो कोई टूल यूज़ करता है, तो मैं नहीं बोलूँगा नहीं तू हाथ से ही उसको टेक्सचरिंग कर पूरा, तू कोई एक्जिस्टिंग टूल या स्किन मत यूज़ कर। नहीं, तो टूल्स टूल इज या हाँ, मतलब आज के डेट में टूल्स डिफरेंट चीज हो गया। मतलब व्हेन यू से एआई हाँ, इज वही लाइक वही समथिंग पूरी आर्ट जनरेट करना हाँ, वो आई डोंट सपोर्ट यूजिंग सो मच प्रॉम्प्ट्स। क्योंकि हाँ, यूजिंग प्रॉम्प्ट्स की, पर वो भी मतलब आप बोल रहे हो तो ठीक है कि मैं अगर राइटर ही हूँ और मैं एआई से प्रॉम्प्ट करते-करते पूरा एनीमे या एनिमेशन वीडियो बना दूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि आई एम द क्रिएटर फॉर दिस और एनिमेशन इज़ डन बाय एआई। तो आप उसके तरह प्रेज़ेंट कर रहे हो तो ठीक है। तो अगर आप सिर्फ़ आप बोलो कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं आर्ट ही एआई से जनरेट कर रहा हूँ और
इंस्टाग्राम में डाल रहा हूँ बोल के ये मेरा आर्ट है, तो वो गलत है तो वो कि क्या मतलब आप मतलब एआई से बना के कॉपीराइट लगा दो कि हाँ, तो भाई ज़्यादा ही एआई गलत है बाय कि ऐसे XYZ, वो कुछ ज़्यादा ही। और फिर कुछ-कुछ क्रिएटिव काम में जो जॉय है वो फिर अगर आप एआई को मतलब आप वो एआई को आउटसोर्स करो जो आपको इरिटेटिंग लग रहा है। मतलब आपको जो रिपिटेटिव काम है, जो आपको नहीं करना है। आप जो आपका क्रिएटिव काम है अगर एआई को आउटसोर्स करोगे तो फिर आप मतलब उसको मतलब फिर आप बिज़नेस ही चला रहे हो, आपको इसके लिए मतलब कोई पैशन नहीं है, आपको कुछ क्रिएटिव करना नहीं है, आपको सिर्फ़ उसका अगर जैसे मैं किसी एआई अवतार को लेके इंस्टाग्राम पेज बनाऊँ और चलाऊँ और फिर उससे पैसे कमाऊँ। तो वो सिर्फ़ एक बिज़नेस तरीका है, पर उसमें आपका कुछ आर्ट या ये नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। मतलब मैं टोटली अगेंस्ट भी नहीं हूँ, पर उसको एआई को आप सिर्फ़ एज़ एक कोवर्कर या असिस्टेंट यूज़ करो, जो आपके तो काम जब को आप फिनिश स्टार्ट करने कर में रहे हेल्प थे, करो। ठीक है, से लास्ट ईयर अक्टूबर, तब आपने एक्सप्लोर नहीं किया कि रादर देन सर्चिंग, तो यहाँ नहीं मैं पूरे वही दिन बोल रहा था मैंने जब स्टार्ट किया तभी शुरुआत में मैंने जब आप, एक्सप्लोर हाँ, कि आप टेक बैकग्राउंड से हो, आपको मतलब इफ देयर आर चैलेंजेस फाइंडिंग आर्टिस्ट, लॉट ऑफ राइटर्स का यही रहता है या पब्लिशर्स की, मुझे आर्टिस्ट ढूंढने में दिक्कत हो रही है, राइट? तो डिडंट इट क्रॉस योर माइंड कि ठीक है मैं एआई से भी शुरू कर सकता हूँ, मेरे पास कहानी तो है, मैं नहीं मतलब एआई का एक तो अभी तक उसका आर्टवर्क उसका वर्क इतना अच्छा नहीं है कि आप एज अ पास ऑन करो कि एक ह्यूमन ने बनाया है या फिर वो मतलब एज अ जैसा मुझे चाहिए वैसे आएगा नहीं और उसमें बहुत इश्यूज होंगे। प्लस अगर मैं एज अ कॉमिक ब्रांड करके जा रहा हूँ तो मुझे वो आर्टिस्ट प्लस राइटर का ये चाहिए कि मतलब एक हमने कॉमिक बनाया, मैंने और नितिन ने बनाया, तो वैसे मतलब वो ज़्यादा सेंस बनता है कि मतलब मैं राइटर हूँ और आर्टिस्ट का कोई क्रेडिट ही नहीं है क्योंकि वो सब एआई है। सो आई पर्सनली मुझे वो नहीं सेंस बनेगा। और फॉर इंस्टेंस अभी मेरा मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये सब वॉल्यूम हो जाए, तो मैं नेक्स्ट ईयर सोचूँ कि उसका एनीमे सीरीज़ बनाऊँ या एनीमे एक एपिसोड बनाऊँ। एटलीस्ट वर्ल्ड बियॉन्ड का फर्स्ट चैप्टर का एपिसोड बनाऊँ और फिर किसी को पिच करूँ। तो उसके लिए अगर मैं क्राउड फंडिंग करूँ, तो मतलब मतलब एक ऑप्शन है कि मैं क्राउड फंडिंग करूँ, ट्राई करूँ, रेज़ करूँ। तो जब वो बनाना होगा, अगर उस स्टूडियो के पास मैं जाऊँगा, तो मैं उस स्टूडियो को बोलूँगा अगर आपको एआई से सस्ता हो रहा है या एआई से आपका हेल्प हो रहा है करने को, तो आप एआई भी यूज़ कर सकते हो। और मतलब वो स्टूडियो बनाएगी, पर उसमें जितना आपको एआई से हेल्प हो रहा है वो कर सकते हो और बाकी ये मेरे कैरेक्टर्स है तो वो तो आपको बनाने पड़ेंगे वैसे और वैसे के वैसे। और फिर मैं मतलब उसमें एआई मैं यूज़ कर सकता हूँ कि मतलब अगर क्योंकि मैं खुद से तो नहीं करूँगा, पर मैं जिस स्टूडियो को हायर करूँगा मैं उनको बोलूँगा नहीं कि आप एआई के बिना ही आपको सब कुछ खुद से ही करना है। तो मैं बोलूँगा आपके पास एआई का फ्रीडम है, आप मुझे फाइनल आउटपुट चाहिए कि मुझे इस चैप्टर का एक एनीमे एपिसोड चाहिए, मतलब 2D सिंपल भी होगा तो भी ठीक है। तो मुझे एक विजुअल फॉर्म में वीडियो फॉर्म में चाहिए कि ताकि मैं उसे पिच करूँ या एक बार एक मतलब रिलीज़ करके देखूँ कि क्या ऑडियंस का ये है फीडबैक है उसपे। So in short, you are totally not against एआई you are not against using AI, but हाँ, मतलब you have your own viewpoint on that कि मतलब AI is more like a support instead of being the main tool. नहीं है। क्रिएटिविटी के लिए मोस्टली अवॉइड की। मतलब आप उसको एज़ असिस्टेंट लेके बात कर सकते हो कि ये आइडियाज़ है, ये प्लॉट्स है, उसमें क्या है वैसे। पर आपका भी होना चाहिए इन्वॉल्वमेंट। वो एक का प्रॉम्प्ट से पूरा जनरेट होके कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आप पुणे कॉमिक कॉन गए थे कि बॉम्बे कॉमिक कॉन गए थे कि दोनों गए थे? मुंबई कॉमिक कॉन एक ही गया हूँ मैं। पुणे वाला मेरा मिस हो गया एक्चुअली तभी आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, तो मतलब आप पूछे थे अजीत भाई का क्वेश्चन था कि आप पुणे कॉमिक कॉन नहीं गए, राइट? ओनली मुंबई कॉमिक कॉन हाँ, गए, पुणे राइट? नहीं। तो पुणे कॉमिक कॉन के टाइम एक्चुअली ग्रीन डे मुंबई आ रहा था और मैंने वो लोलापालूज़ा का टिकट लिया था। तो मैं तो उसके लिए मुझे और पुणे कॉमिक कॉन मेरे को लगा कि ज़्यादा लोग नहीं आएँगे। वो ज़्यादा ईज़िली एक्सेसिबल है मेरे लिए मतलब नज़दीक है। और मुंबई भी मतलब एक्चुअली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई हूँ मैं, पुणे 3 साल पहले ही शिफ्ट हुआ। अच्छा अच्छा। तो तो आई थिंक मुंबई वाला था कि उसके टाइम उस टाइम पे मेरे पास 5 बुक थे तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था, थोड़ा ज़्यादा बुक्स होंगे तो ज़्यादा मैं रेवेन्यू ले पाऊँगा ऐसे। पर अच्छा एक्सपीरियंस था, थोड़ा एक्सपेंसिव है काफ़ी अगर थोड़ा मतलब वो मुझे थोड़ा लगा कि कुछ लोगों को आप वो लोग इनवाइट करके ये करते क्योंकि वो नोन आर्टिस्ट है, पर हम जब तक नोन नहीं होते तब तक हमें वो पे करके जाना पड़ेगा, तो वो एक-एक स्टॉल काफ़ी एक्सपेंसिव बेच रहे थे। सो
अगर वो थोड़ा भी अफोर्डेबल करते तो इट वाज अ नो ब्रेनर कि हर एक कॉमिक कॉन में जाओ और सेल करो। अभी जैसे कि मुंबई तो ठीक है, अगर मैं दिल्ली जाऊँ या बैंगलोर जाऊँ तो फिर फ्लाइट का खर्चा, फिर वो जो भी लॉजिस्टिक है वहाँ रहने का खर्चा, वो सब बढ़ जाएगा। आपको आईसीए के बारे में मालूम है? कॉमिक हाँ, एक्चुअली तो आपने मोहम्मद वहाँ पे जब हाँ, तो जब मैं स्टार्ट कर रहा था क्राइस का कॉमिक का, तो मेरी बात सबसे पहली बात मेरी शाहबाज से हुई थी, अगर आप जानते हो मोहम्मद शाह। तो उसने निर्वाणा 1 घंटा, और हाँ, हाँ, 1 घंटा उसने मुझे पूरा कॉमिक इंडस्ट्री का ये दिया, बैक स्टोरी दिया, जो भी चल रहा है ऐसे। तो फिर तभी हाँ, तो उनका जो ग्रुप है तो वहाँ पे मुझे पता है कि उनका वो आईसीए है, पर मैं अब तक वो श्योर नहीं हूँ कि मतलब वो किस तरीके से वर्क, मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं हूँ एज़ अ राइटर टू प्रमोट माय बुक, तो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टी है कि मैं सिर्फ़ बुक सेंड करूँ और लोग उसे सेल करें। क्योंकि वो जो पिच होता है या समझाना होता है कि ये कॉमिक क्या है, क्या ये विज़न है, मैं राइटर हूँ और मैंने ये क्यों बना है, क्या होने वाला है। तो उससे मतलब मोस्टली सेल्स वही आता है जब मैं उनको बात करके कन्विंस करता हूँ। सिर्फ बहुत कम लोग आता है आके देख के और खरीद लेते हैं। मतलब वो ऐसे 10-20% रहता है जिनको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी ऐसे 50-60% को आपको बताना होता है, पिच सेल करना होता है। तो मुझे वो बट कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सिर्फ बुक सेल कर बेच दूँ तो वो सेल हो पाएगा कि नहीं। तो बट मेरा काउंटर आर्गुमेंट ये है कि आईसीए तब भी एक स्टॉल लगा लेती है, राइट? तो उसमें अगर हाँ। इंडिपेंडेंट पब्लिशर्स की बुक को रख पा रही है तो आपके तो स्टॉल का हुँ। खर्चा बच जा रहा है। आपको जाने से किसी ने तो नहीं रोका है। आईसीए ने ऐसा कहा है कि आप हुँ। नहीं आ सकते हो उनके स्टॉल पे, प्रमोट नहीं कर सकते। नहीं वही कि फिर उसके बाद मतलब उसपे भी आपका शेयर होता है कि अगर वो बड़ा स्टॉल लेते हैं और फिर उसमें जितने हैं उसके हिसाब से 50,000 के बदले 15,000 देना होगा मुझे, वो एक शेयर के लिए, एक अच्छा। पार्ट के लिए उसके लिए। तो पर वही कि वो 15,000 दूँगा, फिर वहाँ जाके मुझे पता नहीं कि वो कैसे होगा कि मैं वहाँ पे खड़े रह के, मतलब मैंने वो कभी ट्राई नहीं किया। तो एक ही कॉमिक कॉन में गया था तभी, जो मुंबई का था। और तो अभी और मुझे वही था कि शुड आई कमिट टू आईसीए, और फिर अगर मैं बैक आउट करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बोला कि हाँ, मैं आईसीए में हूँ पर मुझे इसमें नहीं आना, मुझे उसमें नहीं आना, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। तो मैं सोचा कि आई तो थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, मे बी सारे वॉल्यूम्स हो गया और जब मैं एक्टिवली करना, थोड़ा बैक स्टेज मतलब मैं पैसिव हो जाऊँगा तो तब मैं आईसीए जॉइन करके वहाँ से थ्रू बेच सकता हूँ, जहाँ पे जब मैं एक्टिव नहीं हूँ उतना। तो वही सॉरी तो वही ऑप्शन मैंने रखा था कि मतलब मुझे ऐसे नहीं कि ऐसे ही ज्वाइन नहीं करना, पर मुझे अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि अभी ज्वाइन करूँ कि मैं वेट करूँ कि खुद से थोड़ा जितना हो सके हाथ पैर मार लूँ। No, but I like this approach of yours. मतलब you are मतलब आप धीमे धीमे लेकिन बहुत ही कैलकुलेटेड you are entering this, so I like that approach. मतलब एक साथ क्यों बंद करना, पहले अपनी हाँ, चीज मतलब आप रेडी सबकी करो एंड सुन रहे देन हो लेकिन कर अपने मन की रहे हो। that's nice. uh so विश्वेश, दिस होल पॉडकास्ट वी मतलब हम मेरा और जीत भाई का तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वी लाइक टॉकिंग टू यू। ठीक है, फिर सॉरी, अब हम विल रैप अप, कंक्लूडिंग ओके। पार्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, हाँ। सो So, Vishwesh, मेरा और जीत भाई का पर्सनल एक्सपीरियंस है टॉकिंग टू यू, राइट? व्हाट वी अंडरस्टैंड, मतलब यू आर क्वाइट फोकस्ड एंड द वे यू हैव प्रोड्यूस्ड आपकी जो भी सीरीज है ना, मतलब विद इन 1 ईयर 7 पार्ट्स लाना, इट्स अ बिग रिमार्केबल। यू विल नॉट, आपको भले ना समझे लेकिन जो भी कॉमिक्स रीडर है, राइट, फॉर देम as part a publication giving out 7 books in a series, it's an amazing thing. In a year is an amazing thing. So उसके लिए congratulations and we will hope कि जल्द से जल्द बाकी भी पार्ट्स आए एंड वी आर एबल टू जो एग्जिस्टिंग सीजन उनको कंक्लूड कर सके। एंड जैसे आपने बोला आपका नेक्स्ट स्टेप है, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि एनिमे बना दो और मोशन में जाए, राइट? सो बेस्ट ऑफ लक एंड होपफुली वो हम जल्दी से देखेंगे। सो हमारी परंपरा है, बिफोर क्लोजिंग दिस पॉडकास्ट वी आस्क गेस्ट कि उनको उनका हमारे बारे में क्या फीडबैक है, एनीथिंग दैट यू वांट जो हम बेटर कर सकते हैं, मोर इंटरैक्टिव कर सकते हैं आपके साथ, यू कैन गिव अस दैट। फीडबैक एज़ इन मतलब जो भी आप कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो, और मतलब आपका बहुत ही लाइट और फन वे है, मतलब एक कन्वर्सेशन की तरह रेदर देन एन इंटरव्यू, सो आई लाइक दैट। पर्सनली मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मतलब जैसे मैं कॉमिक इंडस्ट्री के लिए भी लगता है, मतलब इंडियन कॉमिक्स के लिए भी, कि वो हम कंटेंट बना रहे हैं, मतलब इंडियन कॉमिक्स मोस्टली कंटेंट बना रहा है जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए, वो एक बैरियर के बाहर नहीं जा रहा है। जैसे तो मैं मोस्टली अभी ऐड चलाता, तो जैसे अभी बुक्स पढ़ने वाले इंडिया में लाखों लोग हैं जो बुक्स पढ़ते हैं, तो वो लोग कॉमिक क्यों नहीं पढ़ सकते?
तो वो भी मतलब ऐसा है कि जिनको ऑलरेडी लिटरेचर का आदत है, जिनको पढ़ने का आदत है, वो मांगा भी पढ़ सकते हैं, कॉमिक भी पढ़ सकते हैं, तो एटलीस्ट उसमें से 20-30%। और लेकिन एक्चुअली अगर कॉमिक रीडर्स देखो तो वो तो 1% होंगे जो रीडर्स के। सो पर्सनली मुझे लगता है हमें, और मतलब आप भी कॉमिक के मतलब कॉमिक का वो छोटे नीश कम्युनिटी के आगे भी कम्युनिटी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो इस कम्युनिटी में आप ला सकते हो कि मतलब दूसरे, मतलब बाकी बाहर के लोगों को आप और कॉमिक इंडस्ट्री में डाल आपने सकते हो। बिल्कुल सही इंसान के सामने ये वाला बात रखा है। जो हमारे अंशुल भाई है ना, वो नॉवेल्स वगैरह सब कुछ काफी कुछ करेक्ट कहते हैं। मतलब ये हमारे ग्रुप के वन ऑफ द एविड रीडर्स हैं। मतलब ओके। नो होल्ड्स बार हाँ। पे इनको किताब दे दो पढ़ लेंगे वो, वैसा है तो मुझे अंशुल भाई। लगता है कि बिल्कुल शो वही ऑफ कि नहीं करते। जो रीडर्स होते हैं ना, हम्म, उनको मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि पढ़ लिया खुश हो गए, राइट। हाँ वो अब एक जैसे अच्छा हम क्या स्टोरी ही होगा, बात अच्छा। करें, right? हाँ। तो वो थोड़ा सा एक इंडिया में इंडिया में बुक टू कॉमिक्स ट्रांजिशन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक जो सोच है ना, कॉमिक्स बच्चों के लिए होती है। दैट्स द हाँ बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो वही, अगर हम मैच्योर स्टोरी लाए, नैरेटिव्स लाए, क्योंकि मैं जो भी स्टोरी लिखता हूँ एक तरीके से नेटफ्लिक्स सीरीज या एक टेलीविजन सीरीज की तरह सोच के लिखता हूँ कि वो मतलब जितना आप उसको वो पसंद करोगे उतना आप ये भी पसंद करने चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्टोरी। सो आई थिंक अगर मैच्योर स्टोरीज हो, और एक मेरा पर्सनली आई डोंट लाइक कि बहुत सारे लोग माइथोलॉजी में ही जाते हैं कि राक्षस वस्ती देवता उसके वर्जन्स में। या तो वो स्टोरी आपको पहले ही पता होता है, और या तो आप टारगेट करते हो बच्चों को वो स्टोरी बताना है एक फॉर्मेट में, या तो फिर आप उसी के अराउंड कुछ करते हो। तो आई थिंक कुछ नया इंटरेस्टिंग स्टोरीज आया, कोई नया सुपर हीरो भी आया जो मॉडर्न ग्लोबल लेवल पे मतलब मतलब एक एक्सेप्टेड हो, जैसे कि सिर्फ इंडिया का, ऐसा ना लगे कि सिर्फ इंडिया के लिए ही है वो, पर एक जेनरिक सुपर हीरो भी आया, अगर उसका भी आप अच्छा स्टोरी बताओ तो वो भी वायरल हो सकता। मतलब जैसे अमिश त्रिपाठी का जो जितने भी बुक्स है वो इतने वायरल है, इतने। हेलो। यस, वी हाँ आर सुन एबल टू रहे हियर यू। हाँ सॉरी। चलो वो भी तो बुक्स, मतलब उसको अगर आप ग्राफिक नॉवल फॉर्मेट में करोगे तो भी वो इतना ही हिट जा सकता है। हैं। तो मतलब अगर वो जा सकता है एज अ बुक, तो अगर आप भी अगर ऐसे कोई स्टोरी बताओ कॉमिक में, तो वाई कांट दैट बी दैट वायरल, दैट फेमस। तो हमें वो नीश में मतलब ऐसा है कि मैं मतलब मैं बनाऊंगा सिर्फ एक ही ऑडियंस के लिए, और फिर वो ऑडियंस बाय करेगी, बाहर के लोग को बाय करना है नहीं करना है मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तो वो ऐसा एटीट्यूड से फिर ऐसा होगा कि वो ग्रो भी नहीं होगा। तो जब तक हम एफर्ट ना करें कि जो नहीं पढ़ता वो भी आपका स्टोरी पसंद करे, आप उसको कैसे रीच आउट करो, आप उसको कन्विंस करो, आप उसके प्राइस पॉइंट पे लाओ, क्योंकि अभी वो पहले नहीं है, उसको लगेगा कि इतना मैं नहीं दूंगा इस बुक के लिए या इस कॉमिक के लिए। तो उसके प्राइस पॉइंट में आप लाके उसको कन्विंस करो, उसको फैन बनाओ। तो हमें जैसे ही वैसे ही आपका भी पॉडकास्ट, अगर कॉमिक तो आपका मेन ये है, पर आप कॉमिक में और भी लोगों को लाने के लिए कुछ कर सकते हो कि आप कुछ क्रॉसओवर करो, या मतलब उससे ऐसा हो सकता है कि आपका कम्युनिटी बढ़े, और मुझे भी वैसे बड़े कॉमिक कम्युनिटी को मतलब ये करने मिलेगा। मतलब मेरा भी रीच बढ़ेगा कि अगर मैं अभी मेरा रीच आपके इस कम्युनिटी में होगा, पर आप मतलब आपको उस कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए थोड़ा क्रॉसओवर या बाहर से भी लोगों को लाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि कॉमिक अच्छा चीज़ मतलब इंटरेस्टिंग है, आप एक बार स्टार्ट तो करो वैसे। Yep. सो बिल्कुल सही सो इट बात विल बी की नाइस आपने। तो और भी वर्जन्स देखना, क्योंकि कुछ जैसे कि मैं कॉमिक फैन नहीं हूँ, तो आपके कुछ पॉडकास्ट में ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाऊंगा, अगर आप वो नॉस्टैल्जिया वाले पुराने इसमें ज़्यादा फोकस हो, मतलब वो एक फोकस अच्छा है, पर फिर वो कुछ में मैं रिलेट नहीं कर पाता हूँ। तो कुछ में मैं बुलजाई प्रेस और स्वयंभू के कॉमिक्स में रिलेट कर पाया, मतलब आपके इंटरव्यूज को, कि नए कॉमिक लोग कैसे अटेंड कर रहे हैं, क्या स्ट्रगल है, कि क्या क्या पेन पॉइंट्स है। पर अगर आप मतलब जो आपके पुराने कॉमिक्स है और उनके नॉस्टैल्जिया वाले जो एपिसोड्स है, अगर मैंने वो कॉमिक नहीं पढ़ा तो मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा वो। तो वो है कि वो आप मिक्स ऑफ बोथ करो तो अच्छा है कि हमारी कोशिश तो वही रहती वही है। होगा। हाँ हाँ। इस हाँ बस मतलब वही बस चीज़ थोड़ा है, सा बाकी मतलब तो हम लोग हाँ, विंक करते हैं कि जब हम कुछ नहीं करना है तो हम एक नॉस्टैल्जिया का टॉपिक उठा लेते हैं और आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर हम जैसे आपसे तो बात, तो हमें पूरी किताब पढ़ के आना पड़ेगा, राइट। या किसी को भी हम जैसे गेस्ट बुला रहे हैं, तो हम थोड़ा सा हमको मतलब वी नीड टू मेक श्योर कि हम पढ़ के आ रहे हैं। और ये तो बुक के बारे में डिस्कस करना, अगर आप 5 लोगों को बिठा दो और किताब दे दो ना, तो एक डिस्कशन हो ही जाता है आराम से, कि उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है। स्पेसिफिकली अलाइनिंग टाइम्स एंड समर वेकेशन और ये सब पे, मतलब हम चाहते हैं, हम लोग जब शुरू करे थे, हमारे मोटो में चार टॉपिक्स है राइट दुग्गल साहब, कि थोड़ा सा पॉप कल्चर भी बात करेंगे, किताब भी बात करेंगे, नॉस्टैल्जिया भी करेंगे, और गेस्ट भी बुलाएंगे।
और अभी अब मतलब अभी हम लोगों ने नॉस्टैल्जिया पे 3-4 ऐसे लगातार कर लिया ना कि लोग हमसे पूछने लगे गेस्ट कब आ रहे हैं, नेक्स्ट गेस्ट कौन मतलब है। इंडी बुक्स पे भी करता है, इंडियन राइटर्स के बुक्स पे, या किसी ने खुद से सेल्फ पब्लिश किया वो वाले बुक्स पे, या वैसे आप बहुत सारे मतलब जो भी आप इंस्टाग्राम में या फेसबुक में देख वैसे उन सब पे भी कर सकते हो कि और एक तो कैसे पर्सनली प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम हम लोगों का जो डिस्टेंस है ना, हमें बुक्स मिलती नहीं। जैसे आपकी भी बुक्स जब मैं इंडिया गया तो मैं उठा के तब लाया, देन आई वाज एबल टू ओके एक्चुअली रीड इट। तो वो एक ओके हमारे लिए ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन बहुत बड़ा हो जाता है। कि वो है, मतलब बिना पढ़े सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बात करके क्या ही मतलब है, हाँ राइट? वो भी वो है। तो फिर जैसे कि मैं आप अगर हमारा चैनल भी देख लो ना, ऐसा कोई नहीं कि बहुत बड़ा ही है, हम बस ये कि कंसिस्टेंटली बात कर रहे हैं, जो हमारे साथ है, जितने लोग देखते हैं वही आते हैं बात करने वो के लिए। नीश है। ठीक है, बट ये है कि भरोसा है उनको कि अगर हम किसी चीज पे बात कर रहे हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे, हमने लॉयल पढ़ा। फॉलोअर्स है। मतलब हमने जब पहली बार एक बुक रिव्यू करी थी ड्रैकुला, हम खुद सकते में आ गए थे कि मतलब हम 6 के ओपिनियन अलग अलग थे फॉर दिस सेम बुक, ओपिनियन राइट? ओके कि और जबकि तुम जिन लोगों से दिन रात बात कर रहे हो, वो सेम बुक के लिए कैसे डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सबका अपना अपना एक टेक है किताब को पढ़ने के लिए। तो दैट वाज वेरी गुड डिस्कवरी फॉर अस। और इसीलिए वो आपसे मैं अपना खुद को ओपिनियन बताऊं ना, मैंने 2 पॉडकास्ट से मुझे ना कुछ उम्मीद नहीं थी, एक किस्सा कॉमिक्स का और एक प्राण सर का। क्योंकि प्राण सर का ऐसा था कि निखिल जी आ रहे थे, उनके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम था, तो मैंने बोला कि क्या ही बात करेंगे, और उनसे हमें बहुत मजा आया था। मतलब दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट वेलकमिंग पॉडकास्ट, क्योंकि उनको भी बड़ी खुशी हुई थी अपने पिताजी से बात करके। और वैसे ही मैंने बोला ना कि आपका वो नेशनल ज्योग्राफी का कवर देखने के बाद मुझे बुक से ना ज्यादा कोई उम्मीद नहीं थी, मैं पूरा डिफर करते गया। और जब मैं लास्ट में ना 1.5 घंटे पहले पढ़ रहा हूँ, मैं यार ये तो गलती हो गई कि अब कैसे, कि वो भी ऐसा नहीं कि आपकी 30 पेज की किताब है ना, आप 10 मिनट में पढ़ लो, वो नहीं हो रहा था, क्योंकि नहीं हो स्टोरी रहा। मूव कर रही थी, ठीक है? तो तुमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो फिर देन दैट्स व्हाई वी कुड टॉक फॉर सो मच। मतलब 1-1.5 घंटा हमारी बातचीत हो गई, क्योंकि आपका कंटेंट भी अच्छा था, आपकी जेन्युइननेस जो मुझे काफी सही लगी, राइट? तो इसीलिए मुझे भी और पहले था कि आपने जब पहले मैसेज किया था पॉडकास्ट के लिए, तो मुझे लगा था आप बुक नहीं पढ़ोगे मेरे, तो फिर मैं क्या ही बात करूँ। और फिर तो मैं आपको वही चाहता, आप कब इंडिया आ रहे हैं मैं आपको भेजूँ बुक। और फिर मुझे लगा कि आपने अगर पढ़ा नहीं और फिर हम पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे तो भी नहीं अच्छा ऐसा नहीं कभी लगेगा। नहीं होगा। इसलिए ऐसा मैं कभी आपसे नहीं पूछ होगा। रहा था कि आपने इतने पढ़ ली नहीं है है बुक हम जैसे कि कि आपने। मतलब वो मैं और दुग्गल साहब कोई ऐसी नॉस्टैल्जिया के टॉपिक के लिए मुंह उठा के आ सकते हैं, बट गेस्ट के लिए हम कभी ये नहीं होगा। होमवर्क करके आना पड़ता है। तो हाँ, मतलब वो जो अच्छा है नहीं कि कि वो आपने नहीं आए आप देखोगे कि बाकी हाँ फ्रेंड्स अगर वो उनको मौका नहीं मिला, तो दे मतलब खुद ही का एक रहता है कॉन्फिडेंस कि नहीं, अगर किसी का समय हम ले रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा उस समय की मतलब वैल्यू करो। तो आप लोग कहाँ पे, मैं आपने उनको बुक सेल के भेजा है क्या, मतलब आपके पास कौन एक सी? ही कॉपी है ना सब? हाँ, मेरे पास एक ही कॉपी है। तो आपने उनको भेजा वो कॉपी कि आप एक ही जगह, मतलब एक ही सिटी पे हो? मतलब वही नहीं, अलग अलग है। वही कॉपी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके जीत भाई पढ़ लिए, तो वही हो पाए। हाँ। ओके ओके अच्छा अच्छा। और क्योंकि आपको अच्छा पसंद आया? क्योंकि एज अ राइटर मुझे मेन तो वही है कि मैंने इनिशियली सोचा था मैं डिजिटली फ्री अवेलेबल करूँ ताकि लोग पढ़े, ज़्यादा लोग पढ़े। पर जो फ्री में देखते हैं वो लोग कुछ मतलब उनका कुछ फीडबैक नहीं आ रहा था ना, उनका कुछ मतलब वो फ्री में आप किसी को कुछ देते हो तो वो उसको इतना वैल्यू नहीं करता कि वो मतलब बात डिजिटल फ्री दे मैंने दिया, और बोली थी ना डिजिटली लोग पढ़ते कि भी वो कम है। सेल भी कर देते थे, तो ऐसा कोई मतलब बड़ा फर्क नहीं पड़ता था बुक्स की सेल पे, कि मैं 50% ऑफ कर दूं तो लोग मेरे को पागलों से खरीद लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता था। हाँ, जिनको नहीं मतलब खरीदना है वो जिन्होंने ले ही खरीदा लेते। वो, हाँ जो खरीदते हैं फिर वो लोग उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, फिर वो मुझे मतलब रिप्लाई करते हैं, तो उनको अगर मैं पूछूं तो वो फीडबैक देते हैं। तो वो मुझे अभी तक एक एक्सपीरियंस था कि जिनको भी मैंने मतलब ये किया, जिन्होंने भी खरीदा है उनसे पूछा है, तो सबने पॉजिटिव ही दिया है। किसी ने ऐसा नहीं बोला कि फालतू पैसे वेस्ट किए मैंने इसमें, या कि मतलब अच्छा नहीं था, अप टू द मार्क नहीं था। तो वो तो मुझे मतलब सबसे वो फीडबैक आया है कि स्टोरी और ये अच्छा था। कुछ लोगों को आर्टवर्क में फीडबैक था कि या कुछ लोगों को नंबर ऑफ पेजेस या कंटेंट में ये था। पर मोस्टली अच्छा ही फीडबैक है। और आप लोग का भी जो फीडबैक आपने कल या मतलब स्टार्टिंग में आपने बताया था, तो वो अच्छा है कि एटलीस्ट मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और क्योंकि आप लोग का कॉमिक एक्सपीरियंस ज़्यादा है कि आपने इतने बुक्स पढ़े, कि अगर आपको डिसेंट लगा नहीं तो नहीं, बात है वो कि ज्यादा कम में कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे सौम्या तो उसने कहा था कि जब आप इतना पढ़ लेते हो ना, तो आपका बार बहुत नीचे हो जाता है कि क्या ही उससे बुरा हो सकता है करके।
बट और वो इंडियन बात- कॉमिक्स पे जो रिसेंटली बुक्स आई हैं उसने बार को बहुत नीचे कर रखा है. So and मतलब for your books story, for your book story is good. आर्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट है. We had some questions, but जब आपने बताया कि you are using college going students, so मतलब we are understanding कि जो भी थोड़ी बहुत गलती हुई है, we have a reason for that, and being a जो कॉलेज से जस्ट पास आउट लोगों ने काम किया है, so it's a very good work for them. मतलब ऑनेस्ट अटेम्प्ट आप मतलब एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं कि ऑनेस्ट अटेम्प्ट हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि मतलब कोई स्टेपिंग स्टोन नहीं है. कॉमिक एक इंसान अपनी कहानी इस मीडियम के थ्रू प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है और वो सही जा रहा है, वो वैसी वाइब्स आपसे तो मिलती है. तो यही इसी के साथ हम अपने दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको मौका मिले तो आप किसा कॉमिक्स को एक मौका दीजिए. विशेष को तो आपने यहाँ पे देख ही लिया है, मतलब हम लोगों ने तो पढ़ी है, हम लोग वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. एंड आप भी देखें और अपने फीडबैक दें. आपको पसंद नहीं आया मतलब बता दीजिए. वो कहानी मतलब भी सब्जेक्टिव होती है, आर्ट भी सब्जेक्टिव होता है, राइट? बट मतलब इफ यू आर ए book lover and comic, specifically comic lover, and you want to try Give a something chance. new, yeah, give a chance to get some comics. Thanks बाकी Vishal, लाइक thanks for joining. सब्सक्राइब और वो जो भी कर रहा है कर लीजिए. यहाँ तक आए तो Yes, subscribe. yes, thank you Vishal. Thank you. Bye guys.